recording. Okay, visible. Yes, visible. Okay. So before discussing today's session and further session, can you just confirmation me till now what we are actually discuss? This is I think day six, our day six. So before discussing day six, what is actually what we are discussing in day one, day two, day three, day four, day five? Can you just briefly introduction about our past classes? Just I told you. So basically, types of network and types of topology and broadcasting and collision domain, broadcast domain. Okay. And the last session, you are discussing network cable type connectors, LCS, Okay. CFT, Okay. Thank etc. you. Thank you. Okay. So let me introduce the last sessions actually in very briefly. First of all, we are discussing about what is network. Okay, what is network? What is networking? Types of networking. We are also discussing like organization network, LAN, MAN, WAN, and on-demand network, IoT network. These are the types of network. After that, we are moving towards how two sites are connected, like point-to-point connection with connectivity, server-client architecture, point-to-point architecture, Cisco three-tier architecture. After that, we are moving towards a topology concept. Inside topology, we are discussing LAN topology, WAN topology. Inside LAN topology, there is star topology, ring topology, and bus topology. Inside WAN topology, there is hybrid topology, there is mesh topology, there is tree topology. We are discussing these things in a topology section. After that, we are discussing about various topology real-time example. We are also discussing the real-life example of topologies. Okay. After that, we are discussing about collision domain. What is collision? What is broadcast? And what is domain? We are discussing these three major concepts. What is the concept of collision? What is the concept of broadcast? What is the collision of concept of domain? We are discussing these things. After that, we are discussing how we can reduce collision in my network, how we can mitigate collision in my network, and how we can split broadcast domain inside my network. Like there is a single broadcast, how we can create multiple broadcast domain to for security purpose and for minimize the CPU utilization. Okay, using the VLAN concept. We are discussing these things, right? Yes. And as for our last session, we are actually discussing about the passive networking. Therefore, whenever we are talking about network, there is two kind of network. Okay, one is your one is nothing but your one is your active network. Okay. Hi, Bismay. One is your active net. We are just doing the brief introduction our last past classes. लास्ट टाइम हम बेसिकली क्या डिस्कशन कर रहे थे लास्ट कुछ क्लासेस में जो शुरुआत की एक दो क्लासेस हुई थी उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था जैसे टोपोलॉजी नेटवर्क टाइप प्रोटोकॉल वो कॉलेजन डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन बस उसी का हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं ठीक है कुछ नया नहीं कर रहे हैं अभी नया शुरू करेंगे ओके नेटवर्क की जब भी बात आती है ना तो नेटवर्क दो टाइप की होती है व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग नेटवर्क नेटवर्क आर एक्चुअली टू टाइप्स अगर मैं आपको सिंपली बताऊं लेट्स से दिस इज नेटवर्क नेटवर्क आपकी दो टाइप की होती है एक होती है पैसिव नेटवर्क दिस इज पी गाइस ओके दिस इज पैसिव नेटवर्क वन इज योर एक्टिव नेटवर्क ओके अभी पैसिव नेटवर्क क्या होता है और एक्टिव नेटवर्क क्या होता है बस पहले उससे वो आप लोग पहले इससे समझो एक्टिव पैसिव क्या होता है देखो एक्टिव नेटवर्क वो होता है जो मैंने एक बार कर दिया वो फिक्स नहीं होता हर दिन कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस रहते हैं लाइक कॉन्फ़िगरेशन स्विच की कॉन्फ़िगरेशन स्विच में हर दिन कुछ ना कुछ लॉग बनते हैं कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं और एक्टिव नेटवर्क बनाने के लिए हमें चाहिए स्किल्ड इंजीनियर ओके और हम यहाँ पे जो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं पैसा आप मुझे दे रहे हो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आई एम एक्चुअली क्रिएटिव है एक्टिव इंजीनियर मैं आपको क्या बना रहा हूँ एक्टिव इंजीनियर बना रहा हूँ ठीक है अभी पैसिव इंजीनियर क्या होता है पैसिव इंजीनियर एक लेमैन होता है लेमैन इन द सेंस अनपढ़ जिसके पास नॉलेज नहीं होता वो स्विच कॉन्फ़िगरेशन करना उसे नहीं आता ना ही राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना आता उसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता लेकिन उसे केबल डालना आता है क्रिम्पिंग करना आता है ये सब काम करना आता है जो केबल डालते हैं जैसे आपने देखा होगा आपकी एक कंस्ट्रक्शन काम चल रही है आपके घर में एक तो आया होगा जो होगा एक्चुअल इंजीनियर जो बस काम बता रहा होगा ऐसे करो वैसे करो दूसरे होंगे मजदूर जो काम कर रहा होगा सो पैसिव इंजीनियर लाइक योर
L1 गाइस, L1 गाइस बेसिकली जो होता है लाइक ए पैसिव इंजीनियर होता है, उसको ज्यादा कुछ नहीं आता, 1-2 साल की एक्सपीरियंस होती है उसके पास, एंड ही इज डूइंग द पैसिव टास्क लाइक केबल डालना, कहीं फाइबर कट गया फाइबर बिछाना, केबल किसी को लाइन पैच कोड देना, रैक की साफ सफाई करना, दीज थिंग्स आर हैंडल्ड बाय L1 गाय. But whenever we are talking about L2 and L3 guy, L2 and L3 are actually the active network engineers. Like they are managing the entire environment. So whenever we are discussing network, there is two type of network engineer. One is active network engineer, another is passive network engineer. और आपको कैरियर अगर ये बनानी है, so as per my recommendation, you guys most build your career in active network engineer. Okay. सो अभी हमने देखा एक्टिव क्या होता है एंड पैसिव क्या होता है. सो एक्टिव डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, एक्टिव डिवाइस मतलब हम स्विच स्विच के ऊपर काम करेंगे, राउटर के ऊपर काम करेंगे, फायरवॉल के ऊपर काम करेंगे, सर्वर के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उस डिवाइस को हम कहते हैं एक्टिव डिवाइस. पैसिव लाइक फाइबर केबल आपकी पैसिव हो गया, आपकी वो केबल ट्रे वो भी एक पैसिव डिवाइस है, जिसके अंदर बस एक बार डाल दो उसके बाद काम नहीं करना पड़ता, पैसिव टास्क होती है, उसके अंदर ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, लाइक केबल लेंग, आप केबल कहीं पे डाल रहे हो, आईओ क्रिम्पिंग कर रहे हो, दीज आर द पैसिव टास्क. ओके. सो नेटवर्किंग जब भी आप करो ना, एक्टिव पैसिव दो चीजों आपको आना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं L2 बंदा हूँ या फिर मैं एक L3 बंदा हूँ, मुझे बस एक्टिव एक्टिव आता है, मुझे पैसिव आता ही नहीं है. सो इन दैट केस यू आर नॉट ए गुड नेटवर्क इंजीनियर. लेट्स से आप L3 पे बैठे हुए हो, आपको पैसिव के टास्क क्यों आना चाहिए ये भी आप समझो पहले. जैसे आप L3 पे बैठे हुए हो, आप राउटर स्विच एंड फायरवॉल को मैनेज कर रहे हो, यू आर मैनेजिंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स. ओके. और आपके अंदर वो आप वो कह रहे हो कि मैं केबल कैसे आया मुझे क्या पता, मैं क्यों जानूं, लेकिन आपको जानना जरूरी है. लेट्स से आपके नीचे L2 की बंदा है, आपके नीचे एक L1 बंदा है, ठीक है. अभी L1 बंदा ने आपको कॉल किया, कॉल करके कह रहा है सर यहाँ पे जो फाइबर डला हुआ है ना, ये फाइबर सही से नहीं डला हुआ. सो आपके पास नॉलेज होना चाहिए फाइबर डलती कैसे है, फाइबर कैसे काम करता है, तभी तो आप उसे बोल पाओगे नहीं मैंने डाला है सही से डाला है, फाइबर ऐसे काम करती है. सो यू हैव द नॉलेज दैट हाउ पैसिव नेटवर्क इज एक्चुअली हैपनिंग. आपको पता होना चाहिए कि पैसिव नेटवर्क काम कैसे करता है, भले ही आप उस पर काम ना करो, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए कैसे काम करता है पैसिव नेटवर्क. गॉट इट गाइस? गॉट इट रजत? Yes, 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 got it. ओके. और बड़े बड़े कंपनी की अगर बात करूँ ना, पैसिव काम के लिए वो लोग वेंडर हायर करते हैं, पैसिव टास्क के लिए वो पैसा देते हैं दूसरे पार्टी को, वो आके काम करके जाते हैं. ठीक है, आपको ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है. ठीक है. तो लास्ट सेशन में हमने देखा था वेरियस काइंड ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, हमने बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस देखे थे. फॉर एन एग्जांपल लेट्स ओपन द सेम पीपीटी व्हिच वी डिस्कस इन आवर लास्ट सेशन. इफ आई जस्ट ओपन दिस पीपीटी, लास्ट सेशन में हमने मल्टीपल चीजों को कवर किया था. जैसे यहाँ पे आपके बताऊं, यहाँ पे हमने पहले देखा था किस चीज को, हमने देखा था रैक्स को. अगेन रैक इज इम्पोर्टेंट व्हेनेवर यू आर इन डाटा सेंटर स्क्रीन नेटवर्क. विजिबल मुझे नहीं हो रहा है। एक बार इसमें आप रिकनेक्ट कर लो हेलो। या फिर रीज्वाइन कर लो. और अजय आपको दिख रहा है स्क्रीन? कैन यू जस्ट कंफर्म? नेटवर्क मतलब इशू हो रहा है मेरा। Yes, visible. या इसमें आपके नेटवर्क में मुझे लग रहा है कोई लैगिंग है. ओके. तो नेटवर्क रैक्स एक इंपॉर्टेंट क्यू है. एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको पता होना चाहिए आपकी डेटा सेंटर के हिसाब से आपके पास डिवाइस कितने हैं, और उस हिसाब से आपको रैक प्लान करना चाहिए. आपके पास एक ही डिवाइस है, आप एक ही स्विच लगा रहे हो और रिक्वायरमेंट बता रहे हो मुझे 42 यू की रैक चाहिए, विच इज नॉट गुड. 42 यू होती है मल्टीपल डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, कम से कम 7 से 8 डिवाइस इस बड़े वाले रैक में आती है. सो आपको पता होना चाहिए मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, इस रिक्वायरमेंट के विहप में मैं कौन सी नेटवर्क रैक को डिप्लॉय करूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए. अगर मैंने कल भी आपको बताया था आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कितने यू की रैक है. एक तो यहाँ पे लिखा होगा 1 यू, 2 यू, 3 यू, 4 यू, 5 यू, ऐसा लिखा होगा, बिल्कुल ऊपर तक लिखा होगा 42 यू. ओके. तो सब कुछ लिखा हुआ होगा रैक के अंदर. दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द नेटवर्क रैक्स. ओके. ऑल्सो आई विल शो यू सम इमेजेस. ओके. अगर मैं आगे चलूँ और आगे दिखाऊं, then we are also discuss some of the again some of the network racks, like these are the these particular racks is having one switch. ये जो नेटवर्क रैक आपको दिख रहा है जिसके अंदर C6U आप कहते हैं, 6U के अंदर आप एक नेटवर्क डिवाइस लगा सकते हो, लाइक एक स्विच आपने लगा दिया, एक LIU आप लगा सकते हो. ओके. रजत कैन यू जस्ट टोल्ड मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू? Unit. ओके, राइट, गुड. सो ये भी मल्टीपल वेरियस काइंड ऑफ नेटवर्क रैक्स होते हैं. देखो नेटवर्क रैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इनबिल्ट नेटवर्क रैक्स. ओके. ये जो सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना,
जैसे 6U हो गया, 12U हो गया, 12U हो गया, 15U हो गया, 18U हो गया, ये सारे होते हैं इनबिल्ट, मतलब ये दुकान में जाओगे आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको लेट से आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट ही अलग है, आप चाह रहे हो मुझे ना 6U की रैक चाहिए ना 9U की रैक चाहिए, मुझे चाहिए 7U की रैक, तो आप कंपनी को ऑर्डर भी कर सकते हो, वो आपको बना के भी दे देंगे, कस्टमाइज जिसे हम कहते हैं, कस्टमाइज नेटवर्क, वो भी वो भी एक फैसिलिटी आपको वेंडर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमने देखा था फाइबर, ठीक है। बहुत सारी चीजें फाइबर में आप लोग बहुत बार फंसोगे, ओके। लेकिन फाइबर हमें तो याद रखना, कंपनी में जो फाइबर आता है लाइक ऐसे आते हैं, बंडल्स में आते हैं, ओके, लाइक 1,000 मीटर, 10,000 मीटर, 25,000 मीटर, एज पर योर रिक्वायरमेंट फाइबर आते हैं। और फाइबर के ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम कोटिंग कहते हैं। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, क्योंकि ये सारे जो स्लाइड्स हैं हमने कल ही कवर किया था, जस्ट इंट्रो देके चल रहा हूँ, कि कोई भी डाउट हो इसमें मुझे एक बार पूछ लेना। सो ये जो ऊपर की ब्लैक कलर की शेड होती है इसको हम कहते हैं कोटिंग, ओके। ये बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब करता है, केबल को डैमेज नहीं होने देता। नीचे की जो होती है उसे कहते हैं कैडल्ड, ये बेसिकली क्या करता है, वेदर प्रोटेक्शन करती है। बारिश हो गया, ज्यादा ठंड पड़ रहा है आपके शहर में, सो दिस प्रोटेक्शन इज एक्चुअली हेल्पफुल। दिस इज योर आयरन, आयरन लेयर इसे हम बोलते हैं। आयरन लेयर क्यों यूज होता है, आयरन की जो लेयर होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट्स से आपने सी के अंदर, समंदर के अंदर केबल डाला है, तो मछली तो उसे काट देंगे। सो इन दैट केस, तो ये जो लोहे की प्रोटेक्शन है ना आपकी केबल को, वो प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर दैट देयर इज ए कोर, आफ्टर दैट उसके अंदर हमें मिलता है क्या, कोर। और कोर से हमारी डाटा ट्रांसमिट होता है। कोर के अंदर कौन सी टाइप की डाटा ट्रांसमिट होती है, दिस इज इन लाइट फॉर्म, क्योंकि हम फाइबर की बात कर रहे हैं। गॉट इट? हैविंग एनी क्वेरी टिल नाउ? गाइस प्लीज कंफर्म मी, हैविंग एनी क्वेरी? No, no. इसमें आ रहे थे रजत, No, हैविंग no, Yes, एनी? yes, yes. no, no. ओके, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। हमने देखा था, लेट्स वेट गाइस। हाय मंजीत, Oh, हेलो मंजीत, एम आई ऑडिबल? yeah, sir. You are audible. Good evening, sir. Good evening. Guys, let me just introduce. This guy is Manjit, one of our guy who is interested in fundamental or networking courses. For that particular reason, we are providing a base level classes to Manjit so that he can clear that how this particular networking platform provide trainings. Okay. So Manjit, today we are discussing some concept of fundamentals of network. Inside fundamentals of network, we are discussing the passive network part. Okay. So I Okay. hope you Okay. know something about fundamental of network and basic networking, right? Yeah. Right, sir. Okay. Okay. So guys, these are that's how fiber cables are coming inside my organization. These are the in bundle forms. ये बंडल आपकी 1,000 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी आप जैसे रिक्वायरमेंट आपकी होगी। लेट्स अपनी कंपनी ने रिक्वायरमेंट दिया मुझे 5,000 किलोमीटर तक फाइबर डालनी है, तो 500 किलोमीटर तक आपके फाइबर आएगी। और फाइबर की मैंने आपको लेयर भी समझाया, लेयर में बेसिकली क्या होते हैं, दिस इज अ कोटेड लेयर, दिस इज अ सेकंड लेयर कैडल लेयर, दिस इज आयरन लेयर, आफ्टर दैट देयर इज अ कोर। अगेन कोर के अंदर मेरी एक्चुअल जो डाटा जाती है वो लाइट फॉर्म में डाटा जाता है, ओके। सो हम इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमने कल भी कवर किया था, ये जस्ट हम वार्म अप कर रहे हैं जो आगे की सेशन है उसके लिए, ओके। आगे चलते हैं, आगे बेसिकली हम लोगों ने देखा था दिस इज हाउ फाइबर केबल्स लुक लाइक। ये जो फाइबर केबल लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, दिस इज ए अंडर सी फाइबर केबल, okay. Why I am saying this is under fiber and this is organizational use fiber cable, okay। देखो अंडर सी की जो फाइबर केबल होती है, देयर आर मच मोर पावरफुल एंड देयर आर मच मोर बल्की। जो आप समंदर के अंदर जो फाइबर आपकी जाती है ना, उसके अंदर मोर देन 3 to 4 लेयर्स होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि समंदर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, शार्क्स होते हैं या फिर फिशेस होते हैं, वो क्या करते हैं केबल को काट सकते हैं, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े सबमरीन्स जाते हैं, बहुत सारे मशीन भी जाते हैं समंदर के अंदर। सो बहुत सारे चांसेस ऐसे रहता है कि आपकी केबल कट हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल कोटेड रहता है। जैसे यह ऊपर वाले एक ब्लैक कलर की शील्ड रहती है, उसके बाद आयरन की लेयर रहती है, उसके बाद फिर से एक लोहे की ग्रिल, जो लोहे वाली पाइप होती है ना, इसके बाद लोहे की पाइप भी रहती है, उसके बाद कॉपर की कोटेड रहती है, उसके अंदर आपकी कोर रहता है, ठीक है, विच इज मच मोर सिक्योर इनसाइड योर सी नेटवर्क, ओके। एंड दिस इज योर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल यूज। आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड आपने लगाया होगा या फिर आप कंपनी में फाइबर आपने देखा होगा, सो दीज काइंड ऑफ फाइबर आर कमिंग इनटू योर कंपनीज, ओके।
Let's moving towards a fiber connector. If I'm talking about fiber connector, this is the most commonly used fiber connector. This is your LC connector. Okay. LC में आपको single mode मिल जाएगा, multi mode भी मिल जाएगा. Then Alia, in our upcoming slides, we are discussing how we can diagnose this or how you can distinguish which fiber patch code is single mode and which fiber patch code is multi mode. वो हम आगे देखेंगे. Okay. तो सिंपली आपको अगर बताऊं तो these are the fiber patch code. आउट ऑफ दैट हमेशा याद रखना ये जो एलसी वाले फाइबर पैच कोड है दिस इज हाईली यूज, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। जो मॉडर्न नेटवर्क है वो एलसी पैच कोड को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करता है और जितने भी मॉडर्न नेटवर्क डिवाइसेस आते हैं लाइक एचडी1 हो गया, पालोल्टो नेटवर्क हो गया, जूनिपर नेटवर्क हो गया, वर्षा नेटवर्क हो गया, दे सपोर्ट एलसी कनेक्टर। एक्चुअली दिस एससी एफसी एलटी एमपीओ दीज कनेक्टर्स ऑब्सोलेट, ये इतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन आपकी नेटवर्क में या फिर आपकी कंपनी में अगर टेलीफोन की नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं आईपी फोन, ओके, तो वहां पे आपको एमपीओ टाइप के कनेक्टर को भी देखने को मिल जाएगा। ओके, ये डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूरेशन। आपकी कंपनी लेट से कोई नेटवर्क की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे आपकी कंपनी रन कर रही है, इन दैट केस यू कैन सी दिस एलसी एफसी एसटी कनेक्टर। बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होती है वो एलसी कनेक्टर को सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन में लेते हैं। ओके, again same connector types with more clarity, like this is SC connector, this is LC connector, this is ST connector, this is MPO connector. These are the some types of fiber connector, nothing else. Okay, if I am moving forward, as I earlier said in our last session, we are also deeply analysis what is SFP. Rajat, can you just told me what is the full form of SFP? Rajat, are you there? Small small form factor pluggable. Right, good. Bismay, what is the full form of SFP? Small factor pluggable. No, you are wrong. Manjit, what is the full form of SFP? Sir, small factor pluggable. It is nothing but small form factor pluggable. Okay, sir. Okay, this is small form factor pluggable. That's it. Then can you just out of these three guys, can you just someone briefly explain why we are using SFP? We have RJ45 connector, right? We have RJ45 ports, we have RJ45 connector. Then why we are using SFP to communication to make a successful communication? Uh, SFP convert fiber signals to uh, I don't know, sir, actually. Okay. The simple answer is for high bandwidth. ओके, फॉर हाई बैंडविड्थ एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी कंपनी के अंदर जो ट्रेडिशनल RJ45 कनेक्टर यूज होते हैं ना, पे RJ45 जैसे कैट 6 ए केबल हो गया, कैट 6 केबल हो गया, कैट 5 केबल हो गया, इनकी एक लिमिटेड स्पीड रहती है लाइक 1 Gbps, 2 Gbps, 3 Gbps, आउट ऑफ दैट दे कांट डू मोर डाटा ट्रांसमिशन। लेकिन आपकी जो एसएफपी होती है इसके अंदर आप हाई डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो, 10G data, 20G data, 30G data, 30 Gbps per second, 100 Gbps per second. So high data transmission आप कर सकते हो यूजिंग दिस एसएफपी। ओके, और एसएफपी ही क्यों? बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे कंपनी या फिर बहुत सारे वेंडर ने अपनी एक मोनोपोली चलाई थी टिल 2020 में, उन्होंने कुछ अलग तरीके से पोर्ट निकाले थे अपने डिवाइस के अंदर। सो फिर जो आईएस ओएसआई मॉडल होती है ना, ओएसआई मॉडल जैसा हमारे एक स्टैंडर्डाइज मॉडल है, सो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हम आरपानेट कहते हैं, उन्होंने फिर से क्या किया, स्टैंडर्डाइज एक रूल बना दी कि हर एक स्विच में जितने भी वेंडर हो, जितने भी नेटवर्क डिवाइस लाइक जूनिपर हो, सिस्को हो, अरूबा हो, एचपी हो, सबके अंदर एक सिंगल सिंपल पोर्ट आना चाहिए व्हिच इज अ फाइबर पोर्ट, व्हिच इज अ नथिंग बट एसएफपी पोर्ट। बट आउट ऑफ दैट पहले क्या हो रहा था, किसी ने बना दिया RJ45 पोर्ट और कोई कंपनी दे रहा है वहां पे फाइबर पोर्ट। तो आपने तो जूनिपर की एक केबल खरीद, जूनिपर की आपने एक डिवाइस खरीद ली, लेट्स से उसमें है RJ45 के कनेक्टर, और आपने एक सिस्को की पोर्ट स्विच खरीद ली, उसके है उसमें है एसएफपी की पोर्ट, तो कनेक्शन कैसे करोगे? वहां से एसएफपी है, यहाँ की RJ45 है, तो कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। सो फिर ARPANET ने क्या किया, स्टैंडर्डाइज रूल बनाया कि हर एक डिवाइस में कम से कम 2 एसएफपी पोर्ट होना ही चाहिए, ताकि वो डिवाइस मॉडर्न नेटवर्क के अंदर कंपेटिबिलिटी अपनी गेन कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी नेटवर्क डिवाइस हो, चाहे वो छोटी बहुत ही कम प्राइस की हो या फिर हायर प्राइस की हो, उसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम 2 एसएफपी के पोर्ट रहते ही रहते हैं, जिसे हम कहते हैं अपलिंक।
और अपलिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है, दीज आर मच मोर हायर देन रेस्ट ऑफ द पोर्ट। लेट्स से आपकी एक स्विच है, लेट्स से आपके अंदर एक स्विच है, स्विच के अंदर आपकी यहाँ पे 5 RJ45 के पोर्ट है। इन पांचों पोर्ट की स्पीड क्या है? 1 Gbps पर सेकंड, मतलब पर एमबीपी पर मिनट ये 1 Gbps डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे दो एक्स्ट्रा एडिशनल पोर्ट पोर्ट होगा जिसको हम कहते हैं एसएफपी पोर्ट। ओके, इसके अंदर आप जैसे एसएफपी लगा होगा ना, इनकी स्पीड कितना होगा? हर एक पोर्ट का 10 Gbps होगा। ओके, व्हिच इज हायर, सो इसीलिए हम इसे कहते हैं अपलिंक। इसे बेसिकली डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन, जैसे यहाँ पे आपके फायरवॉल है, यहाँ पे आपके राउटर है, तो उनसे बेसिकली कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हाई एंड डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए इसे हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, एंड in our previous session we are also discuss about how we can identify SFP. We can identify SFP using this particular sticker. In every SFP you have a sticker. कोई सी भी SFP हो, कोई सी भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो सिस्को की हो, चाहे वो अरूबा की हो, चाहे वो कॉमस्कोप की हो, सो उसके ऊपर आपको ये ब्रांडिंग देखने को जरूर मिलेगा। ओके, अगर आपको लेट से बहुत सारे कंपनी में या फिर बहुत सारे इंजीनियर की मेरे पास ऐसी क्वेरी आती है कि सर मेरे पास एसएफपी तो है, लेकिन उसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ था ना, वो स्टिकर सर नहीं है, वो स्टिकर बेसिकली मिट गया है समय के साथ। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कर सकते हो? अपनी स्विच है, राउटर है, उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो कौन सी एसएफपी चल रहा है आपकी एनवायरमेंट के अंदर, कौन सी एसएफपी चल रहा है आपकी एनवायरमेंट के अंदर, और आपकी जो स्विच है वो कौन सी टाइप की एसएफपी को सपोर्ट करता है, वो भी हम आगे देखेंगे। भाया कमांड लाइन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी स्पीड क्या है, मॉडल क्या है, सिंगल मोड है या मल्टी मोड है। ओके, लेकिन अभी एज ए लेमैन, एज ए L1 गाय हम बात कर रहे हैं, हम कैसे पता करेंगे इस एसएफपी की बेसिकली सिंगल मोड है या मल्टी मोड है? लेट्स से यू आर ए नेटवर्क इंजीनियर वर्किंग एज ए L2 नेटवर्क इंजीनियर। आपको अपने प्रोजेक्ट मैनेजर ने आपको कहा कि जा अपनी आईटी स्टोर रूम में जाओ, वहां पे जाके 4 एसएम सिंगल मोड की एसएपी मुझे लाके दे। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? वहीं पे सिंगल मोड भी रखा हुआ है, वहीं पे मल्टी मोड भी रखा हुआ है, वहीं पे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर की डिफरेंट डिफरेंट एसएपी भी रखे हुए हैं। आप अभी आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि मेरे पास सिंगल मोड कौन सा है? तो सिंपली यू आर लुकिंग इनटू द स्टिकर। स्टिकर के ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एसएफपी, दैट मीन द डेफिनेशन स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। दिस इज या दीज टू आर 10G एसएफपी, मतलब इनकी स्पीड जो है वो 10 Gbps पर सेकेंड है। यहाँ पे देखो लिखा है एसएम, एसएम का मतलब होता है सिंगल मोड। अगर एमएम लिखा हुआ होता तो दिस इज नथिंग बट योर मल्टी मोड एसएफपी। अगर एलआर लिखा होता एंड एसआर लिखा होता, रजत कैन यू जस्ट टोल्ड मी एसआर, एलआर और एसआर, लेट्स टॉकिंग अबाउट एलआर, एलआर इज सिंगल मोड और मल्टी मोड? LR is a single mode. ओके, एंड एसआर? Multi-mode. I think your mind is not present in this particular class. Manjit, can you just told me what is the full form of SR and LR? No, sir, I don't know. Okay. So listen very carefully. जो LR होती है उसका नाम होता है लॉन्ग रेंज। ओके, एंड whenever we are talking about SR, this is nothing but your small range, या फिर आप ऐसे कह सकते हो शॉर्ट रेंज। ओके, शॉर्ट रेंज। और हमें ये चीज अच्छे से पता है, अगर मुझे बहुत दूर कम्युनिकेशन करवानी है, देन वी आर यूजिंग व्हिच काइंड ऑफ फाइबर केबल? We are using single mode fiber cable for long distance data transmission. But whenever we are communicating within a area like 1 kilometer or 20 kilometer or was a short range, we are using multi mode. Okay, so now Rajat told me LR, long range is single mode or multi mode? Single mode. Long range Right. travel distance क्योंकि covering the लॉन्ग single लिखा हुआ mode. है यहाँ पे, टर्मिनोलॉजी क्या कह रहा है? यहाँ पे तो था सिंगल मोड, हमें पता चल रहा था, यहाँ पे एमएम में था मल्टी मोड, लेकिन एलआर का मतलब होता है लॉन्ग रेंज, मुझे ज्यादा दूर कवर करना है, विच इज लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है दूर, रेंज का मतलब होता है एरिया, ज्यादा दूर एरिया, मतलब ज्यादा दूर एरिया कौन कवर कर सकता है? मेरी सिंगल मोड। और शॉर्ट रेंज कौन कवर कर सकता है? विच इज माई मल्टी मोड। तो आगे से आप एसआर और एलआर देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये केवल मेरी सिंगल एसएफपी मेरी सिंगल मोड है या फिर मल्टी मोड है। ओके, गॉट इट? हैविंग एनी डाउट्स रिलेटेड टू एसआर एंड एलआर? Okay, one सर doubt. हमारी यस यस, टोल्ड मी। हमारी जो एसएफपी होती है कितने टाइप्स की होती है? जैसे एलआर, एसआर, एसएम और एमएम। इसके अलावा जो जीबी और जो स्पीड है ये भी अलग अलग होती है क्या? देखो
देखो बहुत, हाँ, सबकी स्पीड वैरायटी अलग अलग होती है। देखो बहुत सारे वेंडर है कम दुनिया में। देखो अगर मैं इंडिया की बात करूँ या फिर ग्लोबल नेटवर्क की बात करूँ, तो नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क एसएसपी, नेटवर्क के कोई भी इक्विपमेंट बनाने के लिए वी हैव लॉट्स ऑफ कंपनी। लाइक मैं सिस्को ही लेता हूँ, सिस्को ने अपनी एसएसपी बनाया। ओके, सिस्को ने अपनी एसएसपी बनाया और उस एसएसपी के ऊपर जो टैग लाइन, जो ये जो ब्रांडिंग किया ना, उसकी स्टैंडर्डाइज किया। सिस्को की हर एक एसएसपी में देखना, उसके ऊपर लिखा होगा एसएम, एमएम, या फिर एलआर, या फिर एसआर। इन चारों के अलावा और कुछ नहीं लिखा होगा सिस्को के ऊपर। लेकिन सेम टाइम में अगर आप जूनिपर की एसएसपी खरीद रहे हो, जूनिपर के ऊपर कुछ अलग ही लिखा होगा। वहां पे स्पीड लिखा होगा 1000x, मतलब ये है आपकी 1G एसएसपी। और 10,000 अगर लिखा होगा 1G, दैट मीन्स योर 10G एसएसपी। यहाँ पे वो जूनिपर वालों ने यहाँ पे स्पीड मेंशन किया, सिस्को वालों ने यहाँ पे कोडिंग कर दिया। ओके, आउट ऑफ दैट कुछ नहीं है। मल्टीपल वेंडर्स है हमारे पास, सिंपल से समझो, आपके पास मल्टीपल वेंडर है। सो मैंने क्या किया, मैंने जैसे मैं सिस्को की कंपनी के मालिक हूँ, मैंने डिसाइड क्या किया कि मेरी हर एक एसएपी के ऊपर ना मैं नाम लिख दिया करूंगा, ये मेरी सिंगल मोड की एसएपी है, ये इतना स्पीड है, ये इसकी सीरियल नंबर है, सब कुछ लिख दूंगा। जूनिपर वालों ने वैसे सोचा, हम कोडिंग नहीं लिखेंगे, एसएम एमएम हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो सिस्को लिख ही रहा है। हम क्या करेंगे, स्पीड लिख देंगे, 100 Mbps, 200 Mbps, 1000 Mbps, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। गॉट इट। सो मल्टीपल चीजों में ऐसा नहीं कि आपको हर एक एसएपी के ऊपर एसएम, एलएम, एलआर, एसआर दिखने को मिलेगा, नहीं। बहुत सारे ऐसे एसएपी भी आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बस नंबर लिखे होंगे, 1000, 1000, या फिर 2000, 200,000, और सब 20,000, 30,000, आपको ऐसा भी दिखने को मिलेगा। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर से ज्यादा है, या फिर 200 Mbps से ज्यादा है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग मल्टी मोड और सिंगल मोड, यू कैन आइडेंटिफाई। One query. सर Uh, okay, one बताओ minute. बताओ। So basically, I am using the network cable, the RJ45 connector, so that that cable is the SFP, like just body and structure, just like is the standardized in overall all network. वो आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए पूरी एक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आप बेसिकली ये पूछ रहे हो ना, जैसे RJ45 पैच कोड के लिए एक स्टैंडर्डाइज कोड था, उस कोड से मैं आइडेंटिफाई करता था, क्या ऐसे फाइबर केबल के लिए ऐसी है, यही पूछ रहे हो ना। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि RJ45 कनेक्टर जैसे मतलब एक ही टाइप का होता है, मतलब हर जहां भी जाओगे RJ45 कनेक्टर ऐसे ही है, ऐसे ही हाँ कि हाँ। एसएपी का ऐसे ही लेंथ और साइज ऐसे ही है सेम। हाँ बिल्कुल, वो तो सेम ही मिलेगा। वो कोई भी कंपनी बनाओ। हाँ, कोई भी कंपनी वाला है, उसकी साइज, फॉर्म फैक्टर, वेट, सब कुछ सेम रहेगा। वोल्टेज, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ये जो पॉइंट्स में यहाँ पे लगते हैं ना, पावर भी कंज्यूम करते हैं। डाटा स्पीड वो अलग हो सकता है, लेकिन जो मैं हाँ बोलना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल साइज और ये वो सेम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक सिंपल तरीका बताता ओके। हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे स्पीड को। अगर आपने, लेट्स से आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, आप जाके मार्केट से नॉर्मल एसएफपी बोलोगे, दुकानदार के पास आप गए, जाके बोल रहे हो भाई साहब मुझे एक सिस्को की एसएफपी दे दो। ओके, तो जो एसएफपी, जो दुकानदार होगा ना, आपको बाय डिफॉल्ट 1G की एसएफपी देगा। ओके, 1G की एसएफपी देगा। ओके, क्योंकि 1G की जो एसएफपी होते हैं, ये लगभग मार्केट में आपको 8,000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन सेम केस में अगर आप जाकर दुकानदार को बोल रहे हो भैया मुझे 10G की एसएफपी दो, तो 10G की एसएफपी लगभग आपको 25,000 रुपए पड़ेंगे, क्योंकि 10G की जो स्पीड है वो 10 Gbps पर सेकंड है। मतलब आप यहाँ पे कर रहे हो 1 Gbps पर सेकंड, ये उससे 10 गुना ज्यादा स्पीड में है। तो स्पीड आपकी अकॉर्डिंग टू योर प्राइस, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपकी एसएफपी की स्पीड वेरी करती है। आपके पास लेट्स से नेटवर्क, आप एक ऐसा नेटवर्क चाहते हो जहाँ पे रियल टाइम स्ट्रीमिंग ना हो, डेटा आपकी रियल टाइम में जाना नहीं चाहिए, सर्वरों को आप रियल टाइम में एक्सेस नहीं कर रहे, देन यू कैन गुड टू गो विथ 1G एसएफपी। लेकिन आप लेट्स से आप स्ट्रीमिंग कंपनी हो, एक आप गेमिंग स्ट्रीमिंग करते हो या फिर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, सो इन दैट केस डेटा इज वेरी मच एसेंशियल फॉर योर कंपनी। सो इन दैट केस यू शुड यूज 10G और 20G एसएफपी। ऐसा नहीं 10G एसएफपी है, 20G एसएफपी भी है, 50G एसएफपी भी है। तो एक मेरे पास, हाँ, हमारी कंपनी में जो एसएफपी यूज होता है विच इज 100G एसएफपी, विच इज लगभग 1 लाख। इसकी जो प्राइस है वो 1 लाख है। ये एक एसएफपी की प्राइस भी 1 लाख हो सकती है, क्योंकि ये जो स्पीड देता है ना, बहुत ही ज्यादा देता है, एक्सट्रीम स्पीड। ये बेसिकली डाटा सेंटर में, बहुत कम डाटा सेंटर में इसे यूज करते हैं। ओके, ये बेसिकली स्पीड वेरी करता है। लेकिन जैसे आपने कहा, साइज साइज सबकी सेम रहेगी, वेट सबकी सेम रहेगी, वोल्टेज कैपेसिटी सबकी सेम रहेगी।
ऐसे नहीं कि आपके पास सिस्को की डिवाइस है, आप जूनिपर की एसएफपी खरीद रहे हो, आप लगेगा नहीं, बिल्कुल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। क्योंकि ARPANET ने इसे स्टैंडर्डाइज किया है कि सबकी साइज जो है सेम रहेगी और क्रॉस प्लेटफॉर्म रहेगा। चाहे आपके पास सिस्को की डिवाइस हो, चाहे जूनिपर की डिवाइस हो, आप कोई भी वेंडर की एसएफपी को खरीदो, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। समझ गए रजत क्या कहना चाहता हूँ? Okay, clear. Yes, हाँ clear. सर, जैसे आपकी जो 100G वाली एसएफपी है, ये मतलब चारों में से कोई भी मॉडल की हो सकती है, जैसे बिल्कुल एलआर बिल्कुल। हाँ, और। कोई भी मॉडल की हो सकती है। देखो ठीक कोई ठीक है जैसे सर, यहाँ पे ठीक। लिखा है ना एसएफपी 10G एसएन सिंग, ये बेसिकली जो एसएफपी है ये मेरी सिंगल मोड एसएफपी है, व्हिच स्पीड इज 10 GB पर सेकंड। ओके। वैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम जो नेटवर्क में बैठे हुए हैं, हमारा यहाँ पे यूज होता है 100G की। दैट्स मीन्स हमारी भी सिंगल मोड एसएफपी यूज होता है, लेकिन उसकी स्पीड रहता है 100 Gbps पर सेकंड, व्हिच इज हायर, मच मोर स्पीड। ओके। ओके सर, क्लियर सर। सो रजत, व्हाट इज दिस? Dex व्हाट? box, okay, box. Are you just out of your mind, Rajat? This is, oh, Bismay, what is this? सर, फाइबर पैच पैनल, एलआईयू। Yes, this is LIU. Rajat, understood what is this? हाँ, yes, LIU. Yes, remember, this is very much essential whenever you are diagnose your network. Okay, let's say you are a L2 guy and you are saying your L1 guy that there was a box, so inside there was multiple fiber cables connect. Let's check this box. You are not saying like that. You are saying just go and check the LIU box. Okay, so you should know what is LIU. Okay. So this is your LIU panel or LIU box, you can say. Okay, inside every company, every data center, every network, there after network active device component, there is a passive device. This is a passive device. इसके अंदर आपके क्या होती है, फाइबर स्प्लाइसिंग होती है। देखो यहाँ पे आपके फाइबर आया हुआ है अंदर, आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, स्प्लाइसिंग हुआ है, उसके सारे कोर्स यहाँ पे नेकेट पड़े हुए हैं और यहाँ पे स्प्लाइसिंग हुआ है। ये आउटर ऐसे दिखता है, अंदर से ऐसे दिखता है, अंदर से ऐसे दिखता है। ओके, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो कनेक्टर्स आप देखते हो ना, दिस कनेक्टर आर एलसी कनेक्टर। ओके, इस तरफ भी एलसी कनेक्टर ही रहेगा, इस तरफ भी एलसी कनेक्टर ही रहेगा। इसकी एक मोर डेफिनेशन वीडियो में आपको लास्ट में दिखा दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए एलसी टू एलसी होता क्या है। ओके, फॉर एन एग्जांपल लेट्स ओपन दिस पर्टिकुलर वीडियो, लेट्स क्लियर इट फर्स्ट दिस एलआई कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स गो एंड प्ले दिस। Hello guys, welcome to Networker. So as per our previous session, now we are discussing how actually fiber cables look like, what is pair, how to identify this cable is single mode or multi mode. As you can see, this is a fiber cable. This is a outdoor fiber cable. If you go and check here, this is nothing but how many length of this particular cable. Like 1614 is the meter. Okay, and if you just go little bit down, then you can find there was a branding. Is nothing but multi-mode fiber. So using this technique, you can also identify this cable belongs to multi-mode fiber. This is not single mode. This is multi-mode. If this cable is single mode, then there is SMFF. There is written like SMF, single mode fiber. But now, as it is mentioned MMF, it is multi-mode fiber. And if you go and check here, here is some pairs. These are nothing but these are pairs. What is pairs? As I say, pair is combination of two cores. Okay, inside pair we can find two cores. Let's say as you can see there is only 6 pair, that means I can find 12 core. Okay, if you just remove this core saddled, then there is a two pair cable, two core cable. Okay, so this is done by a fiber splicing machine. You can identify the core actually. Okay, these are nothing, these are the pairs. Inside these pair, let's say this is a orange color pair. Inside this orange color pair there are two core. Okay, there are two cores actually. Okay, so that's all about fiber cable, how to identify fiber cables. Okay. Okay, so this is nothing but your LIU. This is a Comscom branding. That means this device is belongs to Comscom company. This the manufacturing is Comscom. This is nothing but like a switch device. This is called LIU. Okay,
if you open this LIU, how to open this LIU? There is two locks. You just open these two locks to forward mode and just push this back. This is nothing but your this is your LIU. Okay. Inside LIU, you can also find there is a LC connector. There is a LC patch code also. Both front end and back end there is a LC connector are connected. And here we have to just splicing this using the splicing machine. Here again this is a core. Inside this this is a pair. Inside this pair there is a two cores. Okay, there is a core 1, there is a core 2, and as we know, for a single successful communication we need two cores. These are two cores. Okay, how we can put fiber? We can put fiber using this mode. Using these holes we can connect or we can insert fiber inside this LIU. Okay, if you go check, there are 20. This is nothing but your 24 port LIU, but right now I am using just 12 port. Okay, just means I am connecting 12 active devices in this particular LIU. And this is like your LIU LC connector. Both hand connector are like same. Okay, this is how I can connect. Just check, there is a but there is a nothing but lock kind of system. You just put and insert it like that. That's how it's connected. Okay, this is how we can identify which kind of LC connector, how LIU actually looks like, and how fiber cable it looks like. So always remember, there is whenever we are talking about fiber concept, there is a concept of pair and cores. Okay, thank you guys. Okay, guys. Uh, just understand everything what actually we are trying to say. सर इसका ऑडियो तो नहीं आ रहा था। वो मैं हाँ आपको ऑडियो मतलब नहीं आ रहा। ठीक है, मैं वो आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा ताकि मोर आपको एडवांटेजेस हो जाए, आप मोर आइडेंटिफाई कर पाओ क्या होती है एक्चुअली उसमें ना। ऑडियो सर एक थोड़ा ये एलसी की फुल फॉर्म सर एक बार वो बता देना सर। एक सेकंड बताता हूँ। और ये सर जैसे इसमें 2 वायर लग रही थी एलसी में ना, तो ये मतलब ये दोनों तरफ से डाटा शेयर करता है या एक बैकअप के लिए या किस तरीके से होता है? जैसे आपने एक सिंगल वाला बताया था ना स्टार्टिंग में कि एक सिंगल होता है। देखो, एलसी की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है लिसेंट कनेक्टर। ओके, दिस इज नथिंग बट योर ट्रेडिशनल नेम व्हिच इज टेकन फ्रॉम आवर हिस्ट्री। दिस इज नथिंग बट ओके, Lucent connector. Okay, we are not going into the any kind of interviewer is not asking what is the full form of LC or what is the full form of FC. We are not ओके, talking about that. But you, if you remember, then you can remember that this is Lucent connector. Okay, and as you just told me right now, देखो, कोई भी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन मुझे करने के लिए, ओके, जस्ट गो लिटिल बिट डीपर। मुझे कोई भी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कराने के लिए, लाइक डेटा की कम्युनिकेशन हो या फिर वॉइस की कम्युनिकेशन हो, मुझे चाहिए दो पाथ। एक पाथ से मेरी डेटा जाएगा, एक पाथ से मेरी डेटा आएगा, जिसको हम कहते हैं आर एक्स टी एक्स। आर एक्स का फुल फॉर्म होता है रिसीविंग एक्स या फिर रिसीवर टर्मिनेशन, और टी एक्स का मतलब होता है ट्रांसमिशन। ओके, समझ गए आर एक्स टी एक्स क्या होता है? ओके सर। तो इसमें से कोई एक भी बंद हो जाएगा तो आपकी Again, डेटा again, again, RX and TX. आर एक्स होता है रिसीविंग ट्रांसमिशन और टी एक्स होता है ट्रांसमिशन। आर आर का मतलब होता है रिसीव कर रहे हो आप, टी का मतलब होता है ट्रांसमिट कर रहे हो। ट्रांसमिट का मतलब आप भेज रहे हो, रिसीव का मतलब आप रिसीव कर रहे हो डेटा को। ओके, जैसे दो रास्ता है, कोई भी डेटा आपकी डेटा जा रहा है, वॉइस जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, एक रास्ता होगा आपकी जाने के लिए, एक रास्ता होगा आपकी आने के लिए। ओके, जिस रास्ते से आप जाओगे उसे मैं बोलूंगा टी एक्स, आप भेज रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। जिस रास्ते से आप रिटर्न करोगे उसमें मैं बोलूंगा आर एक्स, रिसीविंग एंड, ट्रांसमिशन एंड। ओके, सो आप में से लेट से आप कहेंगे मेरे पास ट्रांसमिशन नहीं है लेकिन रिसीविंग एंड है, क्या मेरी कम्युनिकेशन हो जाएगा? अगेन नहीं हो पाएगा। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करने के लिए वी नीड टू पाथ। वन इज फॉर डेटा सेंडिंग द डेटा, वन इज फॉर रिसीविंग द डेटा। जब दोनों पाथ आपके हेल्दी रहेंगे तो भी आपकी डेटा ट्रांसमिशन हो पाएगा। इसमें से कोई एक पाथ, जैसे टी एक्स आपकी खराब हो गया या फिर टी एक्स में कोई इशू आ गया, देन आपकी नेटवर्क में आ जाएगी लेटेंसी या फिर आपकी नेटवर्क हो जाएगा डाउन। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे देखो दो कोर लगे हुए हैं, एक तो ये एक तो ये। तो इस तरफ से भी एक दो डिवाइस दो निकलेंगे, एक स्विच से जाकर कनेक्ट हो जाएंगे, एसएफपी लगेगा और उस एसएफपी से जाके कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो एक से डेटा मेरी जाएगी, एक से डेटा मेरी आएगी। और हमेशा याद रखना ये आपकी फाइबर केबल है। इस फाइबर केबल के अंदर से निकलेगी आपकी पेयर्स, मल्टीपल पेयर्स आपके निकलेंगे। जैसे नॉर्मली मैंने अभी बताया, मेरे पास होती है 4 पेयर होती है, 8 पेयर होती है, 12 पेयर होती है एंड
24 पेयर होती है, 48 पेयर होती है, दैट्स गोज ऑन। ओके, बहुत सारे, इससे ज्यादा 48 के बाद 128, 248 ऐसे पेयर बढ़ते जाते हैं वो आगे आगे आगे। ओके, लेकिन फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग, ये मेरे पास एक फाइबर केबल है, ये मेरे पास यहाँ पे दो पेयर निकले हुए हैं, हर एक पेयर के अंदर मुझे दो कोर मिलेंगे। inside every pair we must find two cores, मुझे दो कोर मिलेंगे, मतलब ये एक पेयर के अंदर मुझे दो कोर मिलेंगे, मतलब एक सिंगल पेयर से मैं एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर दो पेयर है, एक से डेटा जाएगा, एक से डेटा आएगा। आपने देखा होगा, लेट्स से यू आर एज एक्टिव नेटवर्क इंजीनियर, यू आर फ्रीक्वेंटली एक्सेसिंग योर नेटवर्क डिवाइसेस। आपने देखा होगा आपकी स्विच में लेट्स से एसएफटी लगा हुआ है और वहां पे आपने एक पेज कोड भी लगा रखा है एलसी वाला, उस एलसी वाले पेज कोड का आप निकालना और अच्छे से देखना, इन दोनों जो, ये जैसे मैंने कहा ना, एक पेयर के अंदर दो कोर है, एक कोर में आपको रेड कलर की लाइट दिखेगा, दूसरी कोर में कुछ नहीं दिखेगा, मतलब जिस पर्टिकुलर कोर में आपको रेड कलर लाइट दिख रहा है उससे आपकी डेटा जा रहा है, और जिसमें कुछ लाइट नहीं दिख रहा उससे डेटा आ रहा है। ओके, got it guys? ओके सर। Okay. Rajat, Bismay, having any query? I hope you are having not any no any kind of query. Bismay, are you there? Okay, moving forward. Yes. Uh, so these are some basic kind of LIUs you can say. This is a rack mount LIU. देखो LIU भी दो टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पास सर्वर की अगर बात करूं, देयर आर वेराइटी काइंड ऑफ सर्वर, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ सर्वर लाइक रैक सर्वर, टावर सर्वर, ब्लेड सर्वर। सो वैसे ही मेरे पास जो LIU होती है ना, LIU भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। तो इससे अच्छे से समझो, इफ यू आर बिल्ड योर कैरियर इनिशियली, लेट्स से आप डेस्कटॉप में हो या फिर आपके बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, सो इससे अच्छे से समझना, क्योंकि आप जैसे जैसे सीनियर लेवल में जाओगे, लेट्स से यू आर गॉट अ जॉब इन L2 पोजीशन और L3 पोजीशन, सो यू मस्ट हियर दिस टर्म कि मेरे पास लोडेड वाली एक LIU है, कोई वेंडर आपको बोलेगा सर मेरे पास जो LIU है ना वो अनलोडेड है, तो आपको पता होना चाहिए लोडेड अनलोडेड क्या होती है, रैक माउंटेड वॉल माउंटेड होते क्या है। सो देखो, जो रैक माउंटेड LIU होती है वो बेसिकली नेटवर्क रैक के अंदर लगते हैं। ओके, नेटवर्क रैक के अंदर इन द सेंस, मैं अगर आपको थोड़ी सी एक इमेज बाइफरकेशन कराऊं इसके लिए, देखो ये जो मेरे पास नेटवर्क की रैक की इमेज है, देखो यहाँ पे एक LIU लगा हुआ है, सो दिस इज नथिंग बट योर रैक माउंट LIU, यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे भी एक लगा हुआ है ना, दिस इज नथिंग बट योर रैक माउंट LIU। ओके, ये रैक के अंदर लगते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉलिंग रैक माउंट LIU। वैसे सेम टाइप की मेरे पास होती है वॉल माउंट LIU। वॉल माउंट LIU बेसिकली क्या होता है, ये वॉल में फिट होते हैं, लेट्स से आपका रैक के अंदर स्पेस नहीं है, आप क्या करना चाह रहे हो, वॉल पे लगाना चाह रहे हो आपकी LIU को, सो वो भी आप कर सकते हो। वैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, मेरे पास जो नेटवर्क रैक था वो भी दो टाइप का था, एक तो था वॉल माउंट नेटवर्क रैक, जिसको मैं वॉल पे हैंग करता था या फिर वॉल में ड्रिल ड्रिल करने के बाद उस रैक को माउंट करता था, दिस इज कॉल्ड वॉल माउंट नेटवर्क रैक। दूसरी होती है सरफेस माउंट। ओके, सरफेस माउंट बेसिकली क्या होता है, जो डेटा सेंटर में तो हम वॉल में नेटवर्क रैक को नहीं रखते ना, उसे खड़ा करते हैं बेसिकली सीधे से, तो वहां पे बेसिकली उसे हम कहते हैं सरफेस माउंट नेटवर्क रैक। इसके अगर आपको बेहतरीन एग्जांपल दिखाऊं, लेट्स गो फॉर इट, टेक एन एग्जांपल, वॉल माउंट नेटवर्क रैक। Simple as you can see, these are the wall mount network racks. ओके, ये सिंपल वॉल में माउंट होते हैं, स्क्रूज होते हैं इनके पीछे और पीछे से स्क्रू से वॉल से कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे, दीज आर द वॉल माउंट। ओके, सेम टाइम में अगर मैं आपको दिखाऊं सरफेस माउंट, तो सरफेस माउंट काइंड ऑफ ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर पहिए होते हैं, नीचे उसके देखोगे ना, दीज आर द सरफेस माउंट। ओके, देखो यहाँ पे पहिया लगा हुआ है, ये नीचे रहेगा आपके फ्लोर के ऊपर बेसिकली रहेगा, स्टैंड करेगा, और आप इसके अंदर आप नेटवर्क डिवाइसेस लगाओगे। ओके, ओके, जैसे बिस्मय ने पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LIU, दिस इज नथिंग बट लाइट इंटरफेस यूनिट। इसके अंदर लाइट इंटरफेस यूनिट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर लाइट आता है। लाइट कैसे आता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर आते हैं। ओके, सो इसीलिए इसे, और फाइबर कैसे चलता है, फाइबर हमें पता है लाइट की फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज लाइट यूनिट, लाइट बेस्ड यूनिट इसे हम कहते हैं। समझ गए इसमें आपने जो पूछा था, और आप समझ गए, मंजीत और रजत और बिस्म तीनों ने समझ यस। गया रैक माउंट LIU क्यों होता है और वॉल माउंट क्या होता है। जी। ओके,
इंडस्ट्री में आप काम करोगे वहां पे आपको रैक माउंट भी दिखने को मिलेगा, वॉल माउंट भी दिखने को मिलेगा। आप ये मत समझना कि रैक में ही लगता है एलआईयू, जो वॉल पे लगते हैं वो एलआईयू है ही नहीं। वॉल पे भी आपको एलआईयू मिलता है। बाकी के सब कुछ मैकेनिज्म सेम रहते हैं, इसमें भी स्प्लाइसिंग होती है, इसके अंदर भी कनेक्टर होते हैं, इसके अंदर भी पैच कोड अंदर होते हैं, इसके अंदर भी कोर होता है, सब कुछ सेम रहता है। बस ये डाटा सेंटर की रैक के अंदर लगता है, जैसे नेटवर्क डिवाइसेस लगते हैं उस तरह से लग जाता है। ये बेसिकली आपकी दीवार में लगती है। ओके, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है, दिस इज लोडेड अनलोडेड। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोडेड क्या होता है, अनलोडेड क्या होता है? देखो, दो टाइप्स की ना आपके पास एलॉय मिलता है। अगर आप मार्केट में खरीदने भी जाओगे ना, आपको दो टाइप्स की एलॉय मिलेंगे। एक तो कीमती, जैसे आपने एक एलॉय खरीदा जिसकी प्राइस है 2000 रुपए। ओके, और सेम ब्रांडिंग सब कुछ सेम है, सेम कंपनी की सब कुछ, और दूसरी आपके फ्रेंड ने वही सेम एलॉय खरीदा, उसकी पैसा है 5000 रुपए। ओके, इस प्राइस के डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आपके फ्रेंड ने जो एलआई खरीदा है दिस इज लोडेड एलआई, आपने जो एलआई खरीदा है दिस इज अनलोडेड एलआई। अब लोडेड एंड अनलोडेड की सिंपल सी डेफिनेशन डिफरेंस क्या है? जो लोडेड एलआई होती है ना, उसके अंदर बेसिकली ये जो है ना कनेक्टर, एक कनेक्टर होते हैं। ये जो कनेक्टर है यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये कनेक्टर अगर आपकी एलआई के साथ ही आते हैं, आपको दूसरे से अलग से लगवानी नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट आपने खरीदा है इनको पैसा देके। ओके, ये लगे हुए ही आए थे मार्केट से। सो दिस इज कॉल्ड लोडेड। ओके, अगर ये नहीं लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड अनलोडेड। ओके, देखो यहाँ पे इमेज में भी वही सेम चीजों को हमने डिस्क्राइब किया है। देखो यहाँ पे कनेक्टर्स लगे हुए हैं, दैट्स मीन दिस इज ए लोडेड। और इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू अनलोडेड। अनलोडेड में देखो कुछ नहीं है, खाली खाली सा है। इसको आपको बाद में लाके लगाना पड़ेगा, और इसको अलग से परचेस करना पड़ेगा आपको मार्केट से। क्योंकि यहाँ पे मार्केट से आपने परचेस किया, उसके साथ कनेक्टर भी आया, तो यहाँ पे कनेक्टर की पैसा भी जोड़ा गया है। यहाँ पे कनेक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज लिटिल बिट चीपर इन कंपैरिजन टू लोडेड। गॉट इट गाइस? यस सर। ओके, सेम टाइप की मेरे पास होती है जिसे हम कहते हैं क्या, कोएक्सियल पैच केबल। लेट्स से आप फाइबर नेटवर्क के साथ डील नहीं कर रहे, आप कॉपर केबल के साथ डील कर रहे हो, जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन में होता है ना, कोएक्सियल केबल होते हैं। सो आप कोएक्सियल केबल के साथ कम्युनिकेशन करा रहे हो, आपकी पूरी नेटवर्क जो चलता है वो कोएक्सियल केबल में चलता है। देन यू हैव कोएक्सियल पैच कोड। कोएक्सियल के भी पैच कोड होते हैं, इसमें भी लोडेड होते हैं, अनलोडेड होते हैं। अगर अनलोडेड खरीदोगे अगेन ये कनेक्टर्स नहीं होंगे, अगर लोडेड खरीदोगे ये कनेक्टर्स होंगे। ओके, उसके बाद आपके पास उसके बाद आपके पास आती है एल सी एल आई यू और एस सी एल आई यू। जैसे हमने देखा था कनेक्टर्स, ये हमने अभी जस्ट पहले ही देखा था। ये ये जो होती है ये आपकी एलसी होते हैं। एलसी मींस आपकी कनेक्टर के जो टाइप्स है वो एलसी रहेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा एलसी कनेक्टर कैसे देखने को मिलता है, वो शायद हमने पीछे भी डिस्कस। हाँ, अगर इस टाइप की एलआईयू आप खरीद रहे हो वो भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इस टाइप की अगर आप खरीद रहे हो, इस टाइप की भी आपको कनेक्ट एलआईयू आपको देखने को मिल जाएगा। तो 12 पोर्ट की मिल जाएगी, 48 पोर्ट की मिल जाएगी, 128 की पोर्ट की मिल जाएगी, 64 पोर्ट की मिल जाएगी। दीज आर वेराइटी ऑफ एलआईयू इन दिस मार्केट। ओके, आगे चलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ये देख ले, तो दीज आर द टाइप। यहाँ पर रैक टाइप की आती है। लेट्स से आपको चाहिए 128 पोर्ट की एलआईयू, तो 128 पोर्ट की एलआईयू लुक्स लाइक दिस। ये बड़ा सा एक बॉक्स आपको मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी पूरी कम्युनिकेशन कराओगे। एलसी की भी मिलेगी, एससी की भी मिलेगी, वॉल माउंटेड मिलेगा, लोडेड मिलेगा, अनलोडेड मिलेगा। दे आर वेराइटी ऑफ एलआईयू अवेलेबल इन मार्केट्स। यू कैन गो विथ एनीवन। आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी जैसी है, आप उस टाइप से खरीदो और यूज करो। गॉट इट? हैविंग एनी क्वेरी इन एलआईयू कंसेप्ट? नो सर। Okay, rest two. Can you just acknowledge having any query? थोड़ा वो कॉक्सल पेस्ट कोड के बारे में थोड़ा बता दीजिए दोबारा। कोएक्सियल पैच कोड जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कोएक्सियल केबल होता क्या है। देखो पुरानी नेटवर्क में ना, जैसे आपने देखा होगा टीवी केबल्स जो आते हैं, वहां पे वो एक ब्लैक कलर की केबल डालते हैं जिसको हम कहते हैं कोएक्सियल केबल। ओके, कोएक्सियल केबल कुछ ऐसा दिखता है आपके। ये अभी भी ये तो यूज आई थिंक होता है। ऑब्सोलेट हो गया है। नहीं, ये मतलब ऑब्सोलेट अभी नहीं हुआ है। नहीं नहीं, अभी ऑब्सोलेट नहीं हुआ है, टेलीफोन नेटवर्क में अभी भी चल रहा है। इस टाइप के केबल अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, देन यू शुड परचेस योर कोएक्सियल एलआईयू। आप क्या खरीदोगे उस टाइम? कोएक्सियल एलआईयू खरीदोगे इनको कनेक्ट करने के लिए। ये देखो, ये कुछ कोएक्सियल की एलआईयू की एग्जांपल्स है। ओके, इनके अंदर सेम वही, उसके अंदर वो पेयर वगैरह की तो कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसके अंदर अपनी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, इसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये नेटवर्क में हम डील ही नहीं करते आजकल। ठीक है, समझ गए कोएक्सियल पैच कोड क्या होता है? ये बेसिकली कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए कोएक्सियल पैच कोड यूज होता है।
पैच पैनल यूज होता है। ठीक ठीक है। रजत, ठीक हैविंग एनी क्वेरी? No. Shall we move forward? यस सर। थैंक्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट। देन आगे आती है मेरे पास पेज पैनल। देखो अभी हमने पढ़ा LIU, व्हिच इज इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेनेवर वी आर डायग्नोस आवर नेटवर्क। अभी मैं बताऊंगा आगे जाके इन सबको मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। मैं फंडामेंटल तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन फंडामेंटल में इन सबको क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी बारी आएगी ना नेटवर्क को डायग्नोस करने की, या फिर आपकी नेटवर्क में कोई इशू आया, आप उसे ट्रबल शूट कर रहे हो, देन यू शुड चेक ऑल दिस डिवाइसेस। आपको ऐसा नहीं मैं स्विच देखता हूँ तो मैं तो बस स्विच की खोलूंगा, स्विच में दो चार चीजें में कमांड में देख लूंगा, वैसा नहीं होता। जब आप ऐसे टैग इंजीनियर बैठते हो या फिर नॉक इंजीनियर बैठते हो, सो यू शुड, लेट्स से सिस्को की बात करो, सिस्को टैग इंजीनियर, सिस्को की जो नॉक इंजीनियर होते हैं ना, होते तो वो L3 इंजीनियर है, लेकिन जब इशू आता है ना, वो आके बिल्कुल रैक साफ करके जाते हैं आपकी। क्यों? क्योंकि उन्हें इशू रिजॉल्व करने से मतलब होता है, और यू शुड नो ईच एंड एवरी डिवाइस। आपको उस टाइम पता होना चाहिए पैच पैनल है क्या, LIU है क्या, LIU के अंदर कनेक्टिविटी कैसी है, फाइबर क्या होती है, कॉपर क्या होती है। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग इन नेटवर्क बिफोर गोइंग टू L2 एंड L3। L2 L3 में बैठने से पहले आपको फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके। सो जैसे हमने बात किया LIU बेसिकली क्या होता है, फाइबर कनेक्शन के लिए इसे हम यूज करते हैं। सो काइंड दैट मेरे पास दूसरी एक चीज होती है जिसको मैं कहता हूँ पैच पैनल। ओके। पैच पैनल अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो पैच पैनल नॉर्मली क्या होता है, कुछ दिखता तो ऐसे है वो। और पैच पैनल में भी दो टाइप की चीजें आती हैं, एक तो आती है प्री लोडेड, एक आती है अनलोडेड, दूसरी आती है अनसेडल्ड और सेडल्ड। पहले मैं इन टर्मिनोलॉजी को समझा देता हूँ। लेकिन प्री लोडेड का मतलब इसके अंदर RJ45 पोर्ट, मतलब जो आईओ हम कहते हैं, आईओ भी दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। ये जो होते हैं ना आईओ, दीज आर नथिंग बट योर आईओ। ये आईओ ये बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होके आते हैं उस पैच पैनल के साथ। अगर ये बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होके आ रहे हैं आपकी पैच पैनल के साथ, जैसे हमने इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया है, इसके अंदर आप अगर देखोगे सही से तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी पोर्ट बन के आए हुए हैं। सो दैट्स मीन्स इसको हम बोलते हैं प्री लोडेड। ये ऑलरेडी बना बना हुआ आया हुआ है, तो मुझे इसके अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं है। ओके, कोई ज्यादा आईओ इसके अंदर नहीं लगाना, मुझे बस यहाँ पे पैच कोड लाके अपनी लगानी है, अपनी केबल इसके अंदर घुसानी है। लेकिन सेकंड वन इज अनलोडेड। प्री लोडेड तो हमने देख लिया, प्री लोडेड होता क्या है। प्री लोडेड मतलब सब कुछ लोड होके आया हुआ है आपके पास। अनलोडेड का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, आपको लोड करना पड़ेगा। ये तो अनलोड है, इसके अंदर माल नहीं। जैसे हम ट्रक में माल लाते हैं ना, कहते हैं अनलोड कर दो। अनलोड मतलब माल को निकाल देता है, वो सामान जो भी ट्रक के ऊपर है उसे नीचे कर देता है। सो लाइक दैट अनलोडेड का मतलब होता है इसके अंदर देखो कोई कनेक्टर नहीं है, आपको कनेक्टर अलग से खरीदना पड़ेगा। आईओ जो होता है उसको अलग से खरीद के इसके अंदर पंचिंग करनी पड़ेगी आपको। सो दैट्स व्हाई दिस इज लिटिल बिट चीपर इन कंपैरिजन टू प्रीलोडेड। ओके। उसके बाद आती है सेटल्ड एंड अनसेटल्ड। देखो सेटल्ड और अनसेटल्ड में एक सिंगल डिफरेंस होती है। जो अनसेटल्ड होता है इसे इंडोर में यूज किया जाता है, आपके डाटा सेंटर के अंदर जो यूज करते हो आप सेटल्ड यूज करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई प्रोटेक्शन नहीं, यहाँ पे कॉपर की प्रोटेक्शन है, या फिर आयरन इसे कह सकते हो, आयरन की एक लेयर है, जैसे देख सकते हो ना चमक रहा है, दिस इज आयरन लेयर। क्यों यूज होता है? लेट्स से बहुत सारे कंपनी में ऐसे होता है, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क घर के अंदर भी रहता है, या फिर कंपनी के अंदर भी रह सकता है। नेटवर्क रैक आपकी कंपनी के बाहर भी रख सकते हो आप। लेट्स से कोई यूजर है आपके गेट 1 या फिर गेट 2, आपके दो चार गेट है अपनी कंपनी में, अपने बाहर कहीं नेटवर्क रैक लगाया, तो बाहर क्या होती है, मेरे पास डस्ट होता है। ओके। अगर मेरी इस पोर्ट के अंदर डस्ट चला गया, देन क्या होगा, मेरी कम्युनिकेशन में लैग्स आएंगी, मुझे लेटेंसी मिलेगी मेरे नेटवर्क में, यूजर बार बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क से, तेरे मल्टीपल इश्यूज आर हैपनिंग। सो अनसेटल्ड जो होता है या फिर अनसेटल्ड जो होता है, ये बेसिकली डाटा सेंटर के अंदर लगता है। क्यों? क्योंकि डाटा सेंटर के अंदर कोई धूल वगैरह नहीं होता, तो इसके अंदर कोई धूल प्रोटेक्शन लेयर नहीं होता। लेकिन सेटल्ड की अगर बात करूँ, इसके अंदर प्रोटेक्शन लेयर रहती है, व्हिच इज दिस। ये जो चमक रहा है ना, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन लेयर। ये क्यों होता है? बेसिकली डस्ट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये अगर जब तक है ना इसके अंदर धूल नहीं जा पाएगा। ओके। लेकिन इसके अंदर अगर इस वाली अनसेटल्ड वाली पैच कोड को लेके अगर लेट्स से आपने आउटडोर में लगा दिया, तो ये धूल से बिल्कुल भर जाएगा, लेकिन इसको लगाओगे तो ये लॉन्ग टर्म यूज होगा। ओके। then these are the various type of patch panels like cat5e, cat6, cat6a। तो इन तीनों की बेसिकली आर्किटेक्चर तो सेम है, सब कुछ देखने में भी सेम है, कनेक्टर टाइप्स भी सेम है, लेकिन स्पीड में डिफरेंस है। ओके। स्पीड में डिफरेंस है। कैट 6 ए व्हिच इज कैरी टू कैपेबिलिटी 5 Gbps per second, कैट 6 1 Gbps per second, दिस इज 500 Mbps per second। तो स्पीड में बेसिकली केबल की स्पीड में डिफरेंस है। पैच पैनल में सब कुछ सेम है, पैच पैनल कोई ज्यादा नहीं है, अलग कुछ नहीं है।
लेकिन हर एक नेटवर्क रैक में आप देखना पैच पैनल आपकी जरूर होगा। लेट्स शो यू सम पैच पैनल। देखो यहाँ पे पैच पैनल लगा हुआ है, शायद इसमें नहीं लगा, हाँ यहाँ पे देखो पैच पैनल लगा हुआ है। ये देखोगे ना, ये बीच में जो एक लगा हुआ है, दिस इज योर पैच पैनल। ओके, और ये कौन सी टाइप की पैच पैनल इस रैक में लगा हुआ है? दिस इज अनलोडेड। ओके, देखो यहाँ पे खाली खाली स्पेस है, और एक यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक जो इंजीनियर ये नेटवर्क रैक को मैनेज कर रहा है, उन्होंने हाथ से इनकी आईओ पंचिंग किया है। लेकिन अगर ये लोडेड होता तो इसके अंदर सारे पोर्ट भर के आते हैं, आईओ से भरा हुआ होता, क्योंकि ये नहीं है, दिस इज अनलोडेड। व्हाट इट दिस टेक्नोलॉजी। सर जैसे हमारी अलग अलग केबल रहती है ना, कैट 6 ये की अलग अलग केबल रहती है, तो उसका पंचिंग टूल भी अलग रहता है या कलर कोडिंग अलग रहती है, ये सब सेम रहता है, और फिर कलर फर्क कैसे कोडिंग, होता है? हाँ, अगर कलर कोडिंग की बात करूँ ना, कलर कोडिंग सबकी सेम रहती है। वो डिफरेंस करता है आपकी कंपनी में यूज क्या होता है, ए कोड यूज होता है या फिर बी कोड यूज होता है। अगर बी यूज होता है तो वो तो सेम रहेगा। देखो केबल में कोई डिफरेंस नहीं है, केबल तो सेम ही है, जो कैट 5 है वही कैट 6 भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वो है स्पीड। ओके, स्पीड में डिफरेंस है। दूसरी एक डिफरेंस क्या है, अगर कैट 5 आप केबल मार्केट से लाओगे ना, विच इज वेरी मच लाइक, आपको ऐसे लगेगा आपने कोई सस्ता केबल खरीद लिया है। उसके अंदर कोई इंसुलेशन नहीं होगा, कोई आयरन की कोटेड नहीं होगा, आप उसे आउटडोर में नहीं लगा सकते। जैसे आपने कैट 5 केबल लाया, आपके घर के बाहर आप कैमरा लगा रहे हो, देन आप यूज नहीं कर सकते, 1 साल के अंदर वो खराब हो जाएंगे, उसकी कलर छूट जाएगा या फिर कट जाएगा अपने आप, ऐसे हो जाएंगे। लेकिन वही सेम केस में लेट्स आप कैट 6 या फिर कैट 6 ए लगा रहे हो ना, दीज आर लॉन्ग यूजेबल, मतलब आप इसे फ्यूचर में 3-4 साल तक तो आप इसे अच्छे से यूज कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल कोटेड होते हैं, लेयर्स मल्टीपल होते हैं, और अगेन स्पीड भी उसके अंदर डिफरेंस होती है। लेट मी शो यू एन इमेज एक्चुअली, that's how you can identify what is the actual difference I am saying. Let's open. देखो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ना, ये आपकी कैट 5 है, ये आपकी कैट 6 है। देखो कैट 5 में क्या था, ये देखो बिल्कुल, ये जो प्लास्टिक सा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सस्ता क्वालिटी का था, खींच दोगे हाथ से टूट जाएगा। ओके, लेकिन कैट 6 में ये बहुत ही मजबूत है, इसको आपको काटना पड़ेगा, ऐसे खींचोगे वो नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरी क्या डिफरेंस है, जो कैट 6 ए होती है ना, उसके अंदर एक आयरन की कोटेड आती है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस अगर आप इस वाली इमेज से दिखाऊं, देखो ये आपकी कैट 5 है, दिस ऑरेंज वन इज नथिंग बट योर कैट 5। कैट 5 के अंदर बस एक सिंपल सी एक जैकेट पहना हुआ है मेरे केबल ने, और सारे केबल्स यहाँ पे देखो बाहर निकल रहे हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई दूसरा लेयर नहीं है। कैट 6 में मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक आयरन फॉयल मिला मुझे यहाँ पे, जो हीट को प्रोटेक्ट करेगा, और उनसे इसके अंदर एक स्ट्रेंथ केबल मिला, जो केबल को मेरी फ्यूचर लॉन्ग टर्म यूज के लिए मुझे यूज कर सकता है। वही सेम केस में अगर कैट 7 देखोगे, यहाँ पे देखो मल्टीपल चीजें हैं, हर एक पेयर में एक आयरन की कोटेड हो रखा है, ताकि सी केबल मेरी डैमेज ना हो। हाँ। सॉरी गाइस। सो दैट द बेसिक डिफरेंस, ज्यादा कुछ होता नहीं है, स्पीड डिफरेंस होती है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की डिफरेंस होती है। इसके अंदर ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रोटेक्शन लेयर, इसके अंदर प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत मिलेगी, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके सर। रजत गॉट इट, बिस्मय आर यू गॉट इट? एक चीज और Got पूछनी थी सर, यस यस। जैसे आपने बताया ना, जो हमारा एलसी कनेक्टर है तो उसमें हमारे दो लगते हैं, ट्रांसमिशन के लिए, रिसीविंग के लिए। लेकिन सर जैसे हमारा नॉर्मल फाइबर लगता है घर में, तो उसमें एलसी उसमें लगता है एसटी कनेक्टर, लेकिन वो सिंगल कनेक्टर लगता है सर, तो उसमें कम्युनिकेशन कैसा होता है? देखो जो आपके पास घर में लगता है ना, दिस इज नॉट लाइक एलसी कनेक्टर, वो एलसी कनेक्टर नहीं होता। एसटी होता है शायद ना वो सर? हाँ 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 हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। जो एलसी कनेक्टर होती है ना, वो काम करता है दो पेयर को अलग अलग, एलसी कनेक्टर में दो पेयर अलग अलग होते हैं आपके। लेकिन आपके जो एससी कनेक्टर होते हैं, उसके अंदर दोनों पेयर एक सिंगल कनेक्टर के अंदर आते हैं, इसीलिए आपको वो लगता सिंगल है, लेकिन वो होते हैं दो पेयर के, सॉरी होते वो दो कोर के हैं। इसमें दो कोर डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग है दोनों। लेकिन एलसी में, एससी में क्या होगा, एक सिंगल कनेक्टर के अंदर आपकी दो पेयर जा रहे होंगे। नहीं सर, समझ। उसमें स्प्लाइसिंग करते हुए सिंगल रहती है ना वायर, जो स्प्लाइसिंग करते हैं उसमें, तो सिंगल वायर स्प्लाइस होके वो एसटी कनेक्टर में सिंगल फाइबर घुसती है उसमें। तो आपके क्या डिवाइस क्या है, वो एक बार बताओ। जो सर वाईफाई राउटर, जो राउटर लगता है जियो का घर में नॉर्मल,
एयरटेल का हो गया, जियो का, किसी का भी हो गया ना, उसमें एसटी कनेक्टर लगता है और सिंगल वायर रहती है, वो सिंगल फाइबर केबल आती है घर में, सिंगल रहता है उसमें ना, स्प्लाइसिंग होते हुए देखी मैंने। तो सिंगल रहती है फाइबर, और वो उसके मतलब कि कनेक्टर बना के लगा देते हैं वो। अच्छा अच्छा, लेट मी चेक, आई एम डेफिनेटली चेकिंग एंड आल्सो टोल्ड यू, ओके। ऐसा तो मैंने यस कभी सर। देखा नहीं जो सिंगल कम्युनिकेशन पे कर रहा है, फिर भी देखता हूँ एक बार, ठीक है। मैं अगर दिखा सकता हूँ आपको तो शेयर करके दिखाऊं एक बार आपको सर। दिखाओ दिखाओ। यस, यू कैन नाउ शेयर योर स्क्रीन। वेट सर, एक मिनट। सर इसमें कैमरा कैसे बैक होगा? मोबाइल सेटिंग है। चलो मैं आपको फ्रंट फ्रंट से इस टाइप का सर ये रहता है। ये है ना सर, एलसी, छोटो से चुप करा जरा। सर इस टाइप या का है, देखो सिंगल है उसके अंदर फाइबर ना। अ, ये हम्म। तो ये जो आपकी सिंगल फाइबर है फाइबर। ये किसके साथ कनेक्टेड है? हाँ ये सर राउटर के साथ कनेक्टेड है, ये राउटर है ना इसका। एयर फाइबर है, जियो एयर फाइबर है, क्या है? नो नो सर, फाइबर है, जैसे ऐसा फाइबर आता है ना घर पे, सिंगल फाइबर, ऐसा। ओके। ऐसा करके फिर इसका कुछ ऐसा बॉक्स टाइप का है नीचे, ये करके इसमें स्प्लाइसिंग होता है इसका। अ, ये आपको कैसे दिखेगा ये? हाँ हाँ, दिख इसमें रहा से है दिख रहा सिंगल सिंगल आ रहा है इसमें ना। फिर यहाँ पे इसका ये जुड़ेगा, जो मैंने आपको वायर दिखाया ना, एस टी है। एस टी कनेक्टर, एस टी पैच कोड थी वो एस टी या पैच कोड यहाँ जुड़ती है, और फिर देन इस पे मतलब नेट चलता है। ओके तो ओके ओके। तो सर इसमें या तो इसमें कैसा होगा, या तो ये मल्टी मोड होगा हाँ कि वो हो सकता है। ट्रांसमिशन एक बार ना, रिसीविंग एक ही एंड से। हाँ, आफ्टर दैट क्लास मैं आपको एक बार बता दूंगा। थोड़ी सी मुझे भी देखना, तो इस टाइप के डिवाइसेस मैंने तो बेसिकली देखी नहीं। जो कनेक्टर आप दिखा रहे हो ना, इसके साथ ज़्यादा मैंने काम नहीं किया, मैंने एलसी के साथ ज़्यादा काम किया, राइट। तो मैं एक बार एसटी का भी देख लेता हूँ कैसे काम करता है वो। ठीक इसके है, अंदर कुछ एक बार अलग ही सर होगा। मेरे को वो भी क्लियर करना, जैसे आपने स्टार्टिंग में वो बताया था ना कि जो हमारा एसएफपी है वो 4 तरीके का होता है। तो शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज तो समझ आ गया मेरे को, लेकिन सिंगल मोड और मल्टी मोड वाला वो कैसे अलग होता है? देखो वो भी बता देता हूँ आपको एक बार। जी। यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, ये होती है सिंगल मोड, जिसको हम डोनेट करते हैं वाया एसएम, नथिंग बट योर सिंगल मोड। एमएम क्या होता है? मल्टी मोड। एलआर क्या होता है? लॉन्ग रेंज। एसआर होती है शॉर्ट रेंज। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो आपको हर एक एसएपी में देखने को मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक एसएपी में दिखने को मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ द एसएपी आप लेट्स से सिस्को से खरीद रहे हो या फिर अरूबा से खरीद रहे हो, तो आपको ये दिखने को मिलेगी। आउट ऑफ दैट जितने भी वेंडर है लाइक एचपी हो गया, डेल हो गया, उनके से वो अलग से कोटेड करते हैं, अलग कोडिंग होती है उनकी। जैसे मैंने कहा लॉन्ग रेंज, एलआर क्या होती है? लॉन्ग रेंज। एसआर होती है शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में मेरी कौन सी फाइबर जाती है? दिस इज योर सिंगल मोड फाइबर जाती है। सो दिस इज मोर सिंगल मोड फाइबर, सिंगल मोड एसएफपी। अगर लॉन्ग रेंज की बात करूं, सॉरी शॉर्ट रेंज में मेरी कौन सी फाइबर जाती है? दिस इज नथिंग बट माई मल्टी मोड फाइबर। ओके, तो इसको हम कहते हैं मल्टी मोड एसएफपी, आप कह सकते हो। लेकिन अगर आपकी एसएफपी लेट से आपकी एसएफपी है, एसएफपी के ऊपर लिखा है एसआर, दैट मीन शॉर्ट रेंज की एसएफपी है, ये एक मल्टी मोड एसएफपी है। ओके।
सेम टाइप की आपके पास एक एसएफपी है, उसके ऊपर लिखा है एलआर। एलआर का मतलब होता है लॉन्ग रेंज, ज्यादा रेंज को ये कवर कर पाएगा। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट योर सिंगल मोड एसएफपी। ओके, सेम टाइम में आपकी एक एसएफपी है, उसके ऊपर लिखा हुआ एसएम। एसएम का मतलब क्या होता है? सिंगल मोड, मतलब है सिंगल मोड की एसएफपी है। और एक एसएफपी है जिसके ऊपर लिखा है एमएम, दिस इज नथिंग बट योर मल्टी मोड एसएफपी। SM or MM is very much easier to understand which kind of SFP is it. Single mode is single mode SFP, MM is multi mode SFP. Got it, Amanjit? मल्टी मोड और सिंगल मोड से इसी का ही मतलब जानना चाह रहा हूँ कि मल्टी मोड और सिंगल मोड कैसे, मतलब कुछ ट्रांसमिशन में कुछ फर्क है ये कैसे? हाँ हाँ हाँ, वो भी बता दे। देखो, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगल मोड और मल्टी मोड की जो सबसे बड़ी डिफरेंस होती है ना, सिंगल मोड की जो लेंथ रहती है, जो विड्थ रहती है, जो आप कहते हो, ओके, जैसे ये विड्थ है, ये विड्थ रहता है 9 मिलीमीटर रहता है, या लाइट नाइट 9 माइक्रोमीटर रहता है, जिसको आप कह सकते हो। सेम टाइम में अगर आप मल्टी मोड में देखोगे, वो बहुत ही ज्यादा रहता है, लगभग 20 मिलीमीटर का रहता है, या फिर 20 माइक्रोमीटर का रहता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं विथ सम 50। इमेजेस, लेट्स से सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। इसकी अगर आपको डिफरेंस दिखाऊंगा ना, इस इमेज से ही आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। देखो, ये जो ऊपर वाली है, ये है मेरी मल्टी मोड, नीचे वाला है सिंगल मोड। देखो, सिंगल मोड में बिल्कुल पतला सा रास्ता है डाटा मेरी जाने के लिए। क्योंकि पतला सा रास्ता है, डाटा मेरी सिंगल लाइन शॉर्ट में मेरी डाटा जा रहा है। ओके, इसीलिए डाटा लॉन्ग दूरी को कवर कर पा रहा है, क्योंकि डाटा मेरी बिल्कुल ही सीधे जा रहा है। ओके, लेकिन मल्टी मोड में क्या है, ये जो गोला बना हुआ है ना, देखो बहुत ही ज्यादा विड्थ इसकी बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो, ट्रैफिक अभी ऐसे 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 जा रहा है। तो जैसा अगर ट्रैफिक आपके जिगजैग फॉर्मेट में आपके अगर ट्रैफिक जा रहा है, तो ट्रैफिक आपके ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। एक लिमिटेड पीरियड के बाद ट्रैफिक आपके ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ट्रैफिक जो है वो जिगजैग फॉर्मेट में जा रहा है, कभी कहीं पे जा रहा है, कभी कहीं पे जा रहा है, कभी यहाँ पे जा रहा है, तो कभी यहाँ पे जा रहा है, तो कभी यहाँ पे जा रहा है। लेकिन सिंगल मोड में क्या है, ट्रैफिक आपकी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बिल्कुल सीधा आपकी ट्रैफिक जा रहा है। सो दैट्स व्हाई सिंगल मोड जो होती है वो ज्यादा दूरी कवर नहीं कर पाता, क्योंकि आपके ट्रैफिक जो है ना वो जिगजैग फॉर्मेट में जाता है, और कभी कभी ट्रैफिक इसके अंदर कोलाइड भी हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक यहाँ जाता है, यहाँ के ट्रैफिक यहाँ, वही सेम टाइम में कोई ट्रैफिक ऐसे ऐसे भी जा रहा होगा, तो ट्रैफिक आपकी कोलिजन भी आ जाता है कभी कभी मल्टी मोड में। लेकिन सिंगल मोड में क्या होती है, जाने आने के लिए एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को वो लोग यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन, यहाँ से शुरू किया मैंने, सीधा जाऊंगा जब तक, जहां तक मुझे डेस्टिनेशन ना मिला। लेकिन मल्टी मोड में क्या होता है, जैसे मैंने शुरू किया, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे में क्यों हो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस है। स्पेस है, कभी मेरी लाइट ऊपर जा रही है, कभी मेरी लाइट नीचे जा रहा है। लेकिन मल्टी मोड में मेरे पास स्पेस ही नहीं है, मेरी डाटा बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो इसीलिए मल्टी मोड में मैं ज्यादा दूरी कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिंगल मोड में वी कैन कवर मोर एंड मोर एंड मोर डिस्टेंस। गॉट इट? ठीक है सर, मतलब ये हमें फाइबर से पता लगेगा ना कि हम मल्टी मोड फाइबर यूज कर रहे हैं तो हम मल्टी मोड वाला एसएफपी यूज करेंगे, और सिंगल बिल्कुल मोड यूज बिल्कुल, कर रहे हैं तो, सिंगल है ना मोड सर? के सब। हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक है लेकिन सर, अब क्लियर हो गया। और हाँ हाँ, जी। और एक चीज आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। लेट्स से यू आर ए नेटवर्क आर्किटेक्चर प्लानर और यू आर ए L3 इंजीनियर, आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन कितनी दूरी है। लेट्स से मैं कर रहा हूँ 50 किलोमीटर तक मैं कम्युनिकेशन कर रहा होगा, और वहां पे मैं सिंगल मोड फाइबर लगा दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको हमेशा ये चीज में भी माइंड में लेके चलना पड़ेगा, मेरी कम्युनिकेशन के जो डिस्टेंस है वो कितना है। According to that particular distance we have to decide we should go for single mode fiber, we should go for multi mode fiber। ऐसे नहीं कि मुझे किसी की रिक्वायरमेंट आई और मैंने कह दिया सिंगल मोड लगा दो या फिर मल्टी मोड, जो आपकी मर्जी है। नहीं, आपको पूछना है आपकी जो लोकेशन है। लेट्स से मेरे पास एक साइट 1 है नोएडा में, साइट 2 है लेट्स से मेरे पास है राजस्थान में। दोनों साइट के बीच मेरे पास दूरी कितनी है? अगर दूरी मेरे पास बहुत ज्यादा है, देन वी शुड गो विथ सिंगल मोड। लेट्स से मेरे पास एक डेटा सेंटर है, उसी डेटा सेंटर के अंदर जितने डिवाइसेस है मुझे उन्हें कनेक्ट करना है, देन वी कैन प्रेफर मल्टी मोड। क्योंकि मल्टी मोड में मुझे ज्यादा स्पीड मिलता है, लेकिन कवर कम हो जाता है, जो एरिया है ना वो कम हो जाता है। लेकिन वही सेम टाइम में अगर सिंगल मोड की बात करूँ, स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू मल्टी मोड, लेकिन स्पेस जो है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर रियल टाइम की अगर कोई एग्जांपल दूं, आपने सुना होगा 5 गीगाहर्ट्ज 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई में, आपके मोबाइल में भी आप देख सकते हो हॉटस्पॉट में। 5 गीगाहर्ट्ज में सिंपल कुछ नहीं होता, स्पीड मेरी बढ़ जाती है। ओके, स्पीड मेरी बढ़ जाती है, एरिया मेरी कम हो जाता है। लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज में क्या होती है, स्पीड मेरी कम हो जाती है, एरिया मेरी बढ़ जाता है। सो लाइक दैट मल्टी मोड में मेरी क्या होती है, स्पीड बढ़ जाता है,
लेकिन एरिया कम हो जाता है। सिंगल मोड में मेरा क्या होता है, स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू मल्टी मोड, लेकिन मेरी जो एरिया है, जो रेंज में कवर कर सकता हूँ, दिस बिकम हाई। गॉट इट? यस सर। सर एक चीज़ और, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया ना कि एक आपका साइट गुड़गांव में है और एक आपका साइट राजस्थान में, तो दोनों को कनेक्ट करना है। तो आपने बोला कि ये सिंगल उससे जो है स्ट्रेट वाली से कनेक्ट होंगे दोनों साइटें। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कोर वाली फाइबर है, तो उससे स्पीड बढ़ सकती है क्या हमारी? जैसे हमारा मल्टीपल मोड में क्या हो रहा था ना, मल्टीपल लाइट्स एक ही बार में ट्रेवल कर रही थी, तो उसमें कोलिजन हो रहा था। उसके वजह से हम उसको ज़्यादा लेंथ तक यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर हमारी ज़्यादा कोर वाली फाइबर है, फॉर एग्जांपल 12 कोर वाली फाइबर है, तो जो मल्टीपल लाइट्स जो हमारी ट्रेवल कर रही हैं, वो डिफरेंट कोर से ट्रेवल करेंगी, तो क्या ये उससे जो स्पीड बढ़ जाएगी? हाँ, ये जो लाइट मैंने आपको दिखाया ना, वो लाइट एक कोर की ही बात हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट कोर की बात ही नहीं हो रही थी। एक कोर की बात हो रही थी। एक कोर के अंदर आपकी ऐसे नहीं एट ए टाइम में एक ही डेटा भेजूंगा, एट ए टाइम आप मल्टीपल डेटा भेजोगे। ऐसा नहीं कि आपने एक फाइबर हम्म लगाया, उस फाइबर के अंदर एट ए टाइम एक ही डेटा भेजोगे, तो फिर फायदा ही क्या है, आपने फाइबर क्यों लगाया? फाइबर होती है हाई एंड डेटा को प्रोसेस कर पाए एट ए रियल टाइम। एट ए टाइम आप मल्टीपल डेटा उसके अंदर भेजोगे, तो कैसे जाएगा फिर? ट्रैफिक कभी ऐसे जा रहा, कभी ऊपर ऊपर ऐसे जा रहा, कभी दूसरे की ट्रैफिक ही उसके ऊपर ही ले कर रहा है। तो इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस में हमेशा ये चीज याद रखना, जितने भी हो आप यहाँ हम्म पे अभी, सिंगल मोड हमेशा मेरी लॉन्ग रेंज को कवर करता है। क्यों? क्योंकि वहां की जो ट्रांसमिशन होती है वो सिंगल शॉट में होती है, एक स्ट्रेट लाइन में मेरी डेटा जाती है, वहां पे कोई कोलिजन नहीं आएगा, डेटा मेरी हाई स्पीड में जाके डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। लेकिन जो मेरे पास होती है मल्टी मोड, इन्हें नॉर्मली डेटा सेंटर में या फिर एक रूम के अंदर, एक ऑफिस के अंदर में यूज करता हूँ। इन्हें मैं बाहर रियल दुनिया से कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं करता। क्यों यूज नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा जाती है वो जिगजैग फॉर्मेट में जाती है। और फाइबर, वी आर नॉट यूजिंग फाइबर नॉट प्रोसेसिंग ए सिंगल डेटा। मैं फाइबर को कभी यूज इसीलिए नहीं करूंगा कि मुझे सिंगल डेटा प्रोसेसिंग करनी है, मुझे एट ए टाइम बल्क डेटा भेजना है ना फाइबर के ऊपर। सो फाइबर तो वही सेम चीज हुआ ना आपकी कोर के ऊपर। लेट्स से ए वन, अभी लेट्स से मेरे पास चार बंदे थे, 1 2 3 4, चार बंदे थे, चारों ने अपने कनेक्शन को इनिशिएट किया। तो कोर तो आपके पास दो ही है, तो एक के भी ट्रैफिक कोर से ही जाएगा, दो से का ट्रैफिक कोर से जाएगा, तीन से ट्रैफिक कोर से ही जाएगा, चार की भी ट्रैफिक कोर वन से ही जाएगा, और कोर टू से सबकी ट्रैफिक रिटर्न आएंगे। तो एट ए टाइम में ये जो हैंडल है मल्टी मोड नहीं कर पाएगा। लेकिन सिंगल मोड क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में डाटा को कम्युनिकेशन करा देगा डेस्टिनेशन तक। गॉट इट? ठीक ठीक है सर। रजत, हैविंग एनी क्वेरी? No, no query. Bismay, are you having any query? नो 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 नो। कनेक्टर्स देख लिया, एसएफपी देख लिया, एलआई देख लिया हम लोगों ने। और पैच पैच पैनल में कोई डाउट है किसी को? किसी ने देखा है अभी तक पैच पैनल अपनी नेट कंपनी में? हाँ सर, देखा है सर। LIU भी देखा है, और अपना जो अपना इथरनेट वाला पैच पैनल रहता है सर, वो भी देखा है, दोनों देखा है। गुड। रजत, आपने देखा है? ये LIU को नोटिस नहीं किया, लेकिन ये वाला देखा है। ये कौन सा वाला, नाम तो बताओ उसका। जो रेट LIU रेट, एलआईयू रेक? कोई चोर? ये वाला जो अभी देख रहे हैं, जो नेटवर्क पैच पैनल? दिस इज योर माउंटेड पैच रेट, पैनल। दिस इज पैसिव योर नेट। पैच पैनल। सॉरी, दिस इज योर पैच पैनल। पैच पैनल या Yeah. Bismay, as you are a data center engineer, I think are you already seen these kind of network devices like LIU and patch panels? यस यस। Okay. So now these are some accessories which we are using in our data center environment or network environment to manage our network racks or network data center network racks. This is nothing but your cable manager. What is the actual purpose of this cable manager? To manage network cables. केबल्स में भी आपके फाइबर केबल्स हो सकते हैं, आपके कॉपर केबल्स हो सकते हैं, आपके कोएक्सियल केबल हो सकती है, कोई भी टाइप के केबल्स हो, इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो। कुछ नहीं करना, ढक्कन खोलना है, इसके अंदर बस आपको केबल डाल के ढक्कन पे लगा देनी है। दैट्स हाउ आप अपनी डेटा सेंटर को लीनियर वे में दिखा सकते हो। देखो डेटा सेंटर को मैनेज क्यों करना है, डेटा सेंटर के अंदर ऐसे नहीं कि मैंने नेटवर्क डिवाइसेस बस लगा दी, जूनिपर लगा दी, वर्सा नेटवर्क लगा दी, SD1 लगा दी, फाइबर लगा दी, मैं उसको मैनेज करूंगा नहीं। आपको डेटा सेंटर को एक क्लीन वे में भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो डेटा सेंटर होती है, दिस इज अ क्रिटिकल पार्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो,
डेटा सेंटर रोल है, डेटा सेंटर प्ले है वेरी वाइटल रोल। डेटा सेंटर एक क्रिटिकल जोन है जिसके अंदर आपको डे टू डे में इशू आते रहते हैं, आपको सॉल्व करना रहता है। सो आपको प्रॉपर टैगिंग डेट करना होता है आपके डेटा सेंटर के अंदर, प्रॉपर केबल मैनेज भी करना होता है ताकि रियल टाइम में कोई भी बंदा जाए उसको केबल मिल जाए। हाँ, ये केबल मेरी कोर 1 से आ रही थी, फायरवॉल पे जा रहा था, ये पता चल जाए। लेट्स आप केबल मैनेज ही नहीं कर रहे हो, then you can't understand that which cable was coming from which device. For an example, let's आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे। ये लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। डेटा सेंटर के अंदर अगर आप केबल को मैनेज नहीं करोगे ना, वो कैसे दिखेगा बेसिकली देखो, मेशी काइंड ऑफ दिख रहा है यहाँ पे। इसके अंदर मैं अभी आपको बोल दूं कि मुझे राउटर 1 की मेरी एक केबल नहीं चल रहा, तो आपको केबल ही ढूंढने में ये 8 घंटे लग जाएंगे, आपकी पूरी शिफ्ट निकल जाएगा, आप केबल ही नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा केबल किसी के लिए है। और मैंने कहा राउटर 1 केबल मुझे ढूंढ के दो, क्या पता चला आपने कोई दूसरी केबल बंद कर दी, कोई दूसरी साइट आपकी बंद हो जाएगा। तो इन सब से बेसिकली बचने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा सेंटर को मैनेज भी करते हैं प्रॉपर वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में उसे बनाते हैं, व्हिच इज नथिंग बट डेटा सेंटर ड्रेसिंग उसे हम कहते हैं। टेक्निकल टर्म उसका होता है डेटा सेंटर ड्रेसिंग। दिस इज ए केबल मैनेजर, दिस इज ऑल्सो ए केबल मैनेजर। दोनों सेम है, काम सेम है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा आपको लीनियर, ज्यादा आपको क्लियर दिखेगा पिक्चर, थोड़ी सी डेटा सेंटर आपकी बढ़िया दिखेगा। ये बेसिकली रैक, जो L2 रैक होते हैं आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या फिर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में, उस टाइप छोटे छोटे नेटवर्क रैक्स के अंदर जहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई है, दो डिवाइस लगी हुई है, दिस काइंड ऑफ नेटवर्क रैक्स में आप इस टाइप के नेटवर्क केबल मैनेजर को यूज कर सकते हो। लेट्स से आपके डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर के अंदर यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ केबल मैनेजर। अगेन दिस इज ऑल्सो ए केबल मैनेजर, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो ए मॉडर्न डेटा सेंटर नेटवर्क केबल मैनेजर। ये भी सेम ही है, केबल मैनेजर ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, ओके। इसके अंदर केबल्स बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से आपको दिखेगा और आपको लगेगा आपने कोई नेटवर्क डिवाइस ही लगा रखा है, स्विच लगा रखा है, राउटर लगा रखा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल केबल अंदर अंदर से आ रहे हैं, बस ऊपर से आके टैगिंग भी हो रखा है यहाँ पे। सो इसकी एक प्रॉपर वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसको लगाने के बाद ना कैसा दिखता है आपकी एनवायरनमेंट, वो भी हम देखेंगे, ओके। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको कुछ याद नहीं रखना, बस पता क्या रखनी है, नेटवर्क केबल्स को मैनेज करने के लिए विद इन ए नेटवर्क रैक आपके पास केबल मैनेजर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुझे प्रॉपर केबलिंग करनी है। आप डेटा एज ए नेटवर्क इंजीनियर ऐसे नहीं आप स्विच देख रहे हो, राउटर देख रहे हो, योर यू हैव आल्सो ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज योर एंटायर नेटवर्क एनवायरनमेंट, ये आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसलिए ड्रेसिंग आपको नहीं करना, आप अपनी L1 बंदे को कह सकते हो या फिर पैसिव कोई टीम बुला के डेटा सेंटर ड्रेसिंग कर सकते हो, लेकिन उस टाइम आपको पता होना चाहिए केबल मैनेजर क्या होता है, केबल रैक्स के अंदर केबल मैनेजर कितने साइज के होने चाहिए। ये जो है 2 EU की केबल मैनेजर है, ओके। ये 2 EU की केबल मैनेजर है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। 1 EU की केबल मैनेजर देखोगे थोड़ा सा वो छोटा होता है। सो देयर आर वेराइटीज काइंड ऑफ केबल मैनेजर आल्सो अवेलेबल इन आवर मार्केट्स, ओके। आफ्टर सर दैट 1U और 2U क्या है? देखो, अगर मैं 1U और 2U की बात करूँ ना, ज्यादा कुछ नहीं होता। 1U 2U, देखो जो 1U केबल मैनेजर होते हैं वो होते हैं छोटे, बहुत ही छोटे। अगर बात करो दिस इज योर 1U केबल मैनेजर, ये देखो वन लिखा है ना यहाँ पे, स्टार टेक का 1U हॉरिजेंटल केबल मैनेजर है। देखो कितना छोटा सा है केबल मैनेजर। सेम टाइम में अगर मैं कहीं 2U केबल मैनेजर दिखाऊंगा, दिस इज ए लार्जर केबल मैनेजर, दिस इज ए 2U केबल मैनेजर। मतलब 2U के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा केबल को अच्छे से सजा के रख सकते हो, 1U के अंदर आप ज्यादा नहीं कर सकते, वह 2U से थोड़ी बहुत कम कर सकते हो आप 1U के अंदर। बेसिकली 1U 2U कुछ नहीं होता, साइज होती है। 2U थोड़ी सी बड़ा साइज होता है, 1U थोड़ी सी छोटी साइज होती है। 1U के ठीक अंदर आप ठीक है सर। कम केबल मैनेज कर सकते हो, 2U के अंदर आप ज्यादा केबल मैनेज कर सकते हो। गॉट इट? ठीक है सर। ओके। उसके बाद आती है नेट पैसिव नेटवर्क में मेरे पास कुछ नेटवर्क डिवाइसेस, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, दिस इज योर पीडीयू, दिस इज योर पीडीयू, नथिंग बट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। अगर फुल फॉर्म क्या होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। हालांकि पावर हमारी काम नहीं है, हर एक कंपनी में एक यूटिलिटी डिपार्टमेंट रहती है जो पावर मैनेज करता है, लेकिन एज ए नेटवर्क गाय यू शुड नो दैट आपकी नेटवर्क रैक में कौन सी टाइप की पावर पीडीयू आप लगाओगे, ओके। ये होती है इंडस्ट्रियल पीडीयू, ये डेटा सेंटर के लिए ही बनाया जाता है। इस टाइप की जो पीडीयू होती है ना, ये डेटा सेंटर के लिए ही बनाया जाता है। ये बेसिकली लेयर 2 जो नेटवर्क रैक होते हैं उसके लिए ये ऊपर वाली पीडीयू है, लेकिन नीचे वाली जो पीडीयू है ये बेसिकली डेटा सेंटर की पीडीयू है। देखो यहाँ पे इथरनेट पोर्ट भी आपको मिलेंगे,
दैट मीन्स यू कैन मॉनिटर दिस पीडीयूज। आप नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो इस टाइप एलआई को, और मॉनिटर भी कर सकते हो, पिंग भी कर सकते हो, इनसे ट्रांसफर भी निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इसके ऊपर। ओके, नेटवर्क में इसे आप ब्रॉड एक डैशबोर्ड बनाकर दिखा सकते हो, कितने पोर्ट चल रहे हैं, कितने पोर्ट डाउन है, सब कुछ कर सकते हो। सो यू शुड नो दैट इसको आप क्या कहते हो, इसके हम पीडीयू कहते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसको पीडीयू क्यों कहते हैं, आपको क्यों जानना है। लेट्स से आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर हो, आपकी जो सीनियर है, सीनियर ने क्या क्या बोला कि वो स्विच तो डाउन तो ना हो गया, एक बार जाके उसकी पीडीयू चेक करके आ। आपको अभी पता ही नहीं है पीडीयू क्या है, आप पूछ रहे हो सर ये पीडीयू होता क्या। सो टू नॉट क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू शुड नो दैट पीडीयू होता क्या। बेसिकली पावर स्ट्रिप को हम कहते हैं पीडीयू। ओके, जिसके अंदर मेरी स्विच कनेक्ट होता है और वो पावर से चलता है। ओके, सो दीज आर डेटा सेंटर पीडीयू जो हॉरिजेंटल होते हैं, बेसिकली ऐसे भी होते हैं आपके पीडीयू कुछ ऐसे, और कुछ पीडीयू आपके ऐसे भी होते हैं जिसको हम कहते हैं वर्टिकल। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीडीयूज एंड दिस इज नथिंग बट योर रोडेंट डिवाइस। देखो, कोई भी एनवायरनमेंट पे आप जाओगे ना, नेटवर्क केबल जहां जहां केबल होंगे वहां वहां आपको चूहे भी मिलेंगे। चूहे आपके क्या करते हैं, केबल को काट देते थे। ओके, नॉर्मली अभी भी बहुत सारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, चूहे केबल काट देते थे, काट देते हैं, चाहे वो फाइबर केबल हो, कॉपर केबल हो, कोई भी केबल हो, चूहा केबल काट देते थे। तो इसलिए हमने नेटवर्क रैक के अंदर एक नेटवर्क डिवाइस को डिप्लॉय किया व्हिच इज नथिंग बट योर रोडेंट डिवाइस। इसके अंदर भी आप RJ45 कनेक्ट केबल कनेक्ट करके इसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कौन सी ब्रांड की आप रोडेंट डिवाइस खरीद रहे हो। इसका नाम क्या है, रोडेंट डिवाइस। ओके, इसका सिंपल सा काम क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, एक हल्का सा साउंड है निकालता है, जिसके मदद से चूहे आपके नेटवर्क रैक के अंदर नहीं आते। दैट्स इट। ये नेटवर्क की कोई ऐसा कोई क्रिटिकल डिवाइस नहीं है। लेकिन लेट्स से आपकी नेटवर्क रैक कहीं रिमोट लोकेशन में रखा हुआ है, बहुत ऊपर रखा हुआ है, आपको रोज रोज आप जा नहीं सकते, एक बार अगर चूहे ने काट लिया तो आप इतना जल्दी उसे डायग्नोस नहीं कर सकते, आप रिजोल्यूशन नहीं दे सकते। इन दैट केस आप क्या करोगे, उस नेटवर्क रैक में एक रोडेंट डिवाइस रखोगे, ताकि चूहे की जो प्रोबेबिलिटी है ना, चूहे मेरे केबल काट देंगे वो कर देंगे, ये डिवाइस जैसे ही एक्टिवेट होगा चूहा आपकी नेटवर्क रैक में नहीं आएगा। चौथी जो डिवाइस होती है, दिस इज नथिंग बट योर एटीएस। बड़े बड़े डेटा सेंटर, छोटे बड़े जितने भी डेटा सेंटर होती है, लाइक होंडा की डेटा सेंटर, टीसीएस की डेटा सेंटर, गूगल के डेटा सेंटर, वहां पे क्या होती है, एटीएस होती है। एटीएस क्या होती है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। ये भी एक नेटवर्क स्विच ही होती है, लेकिन ये किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर काम करता है। ओके, इसका सिंपल सा काम क्या होता है, लेट्स से आपके डेटा सेंटर की कोई भी डिवाइस के अंदर पावर चलता है, हमें पता है पावर। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे स्विच है, स्विच के पीछे मैंने दो पावर सप्लाई लगा रखा है। ओके, पावर स्विच के पीछे जो पावर सप्लाई होता है उसे हम कहते हैं पावर स्लॉट। स्विच स्विच के अंदर दो पावर स्लॉट है मेरा यहाँ पे। ओके, अभी ये जो एटीएस है ना, ये मेरी दो यूपीएस से कनेक्टेड है ऐसे। ओके, एक टाइम पे एक ही यूपीएस चलेगा, ये प्राइमरी यूपीएस है या सेकेंडरी यूपीएस है। तो ये जो एटीएस का काम होता है, ये बेसिकली स्विच ओवर करेगा। कभी आपकी प्राइमरी यूपीएस बंद हो गया, तो ये स्मूथली क्या करेगा, नेटवर्क डिवाइस बंद नहीं करेगा, ये क्या करेगा, स्टैंड बाय जो यूपीएस है उससे लाइव करके कनेक्ट कर देगा, चलेगा। आपकी जो स्विच है वो डाउन नहीं होगा, बेसिकली ये काम ये करता है। ये बेसिकली पावर को वन काइंड ऑफ लोड बैलेंस करता है। गॉट इट। सर इसका यूज होता है आज की डेट में, क्योंकि जैसे नॉर्मल स्विच रहते हैं उनमें पहले पीछे दो पावर कोड रहते हैं, या हाँ, सर्वर हो गया, सब में पीछे दो रहते हैं पावर कोड। देखो, दो तो मिनिमम रहते हैं। आज के जितने भी नेटवर्क डिवाइस है ना, उसमें मिनिमम टू मिनिमम दो पावर सप्लाई आपके पास होते ही होते हैं। आप दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसे पालो अल्टो की फायरवॉल आती है आपके पास, उसके पास छह भी होते हैं, चार भी होते हैं, और उसके बाद भी दो स्लॉट आपको दिया जाता है, आप चाहो तो उसे भी एक्सपेंस करके अपनी पावर सॉकेट लगा सकते हो। लेकिन मैं जितने भी पावर सकड़ लगा दूं, वो यूपीएस से ही मुझे, डेटा सेंटर के अंदर की अगर एनवायरनमेंट की बात करूं, वहां तो मुझे यूपीएस से ही पावर मिलेगा। लेट्स से आपके डेटा सेंटर में एक ही यूपीएस लगा हुआ है और वो यूपीएस कभी फेल हो गया, तो आपकी पूरी डेटा सेंटर डाउन हो जाएगा। तो इसलिए डेटा सेंटर को भी रिडंडेंसी देने के लिए हमने दो यूपीएस लगाया है। एक चलेगा हमेशा प्राइमरी में, दूसरा चलेगा स्टैंड बाय में। मतलब इस एक में आप अगर हाथ लगाओगे ना, आपको करंट लगेगा। इस दूसरा बेसिकली डाउन में रहता है, ये चलता नहीं है, बस देखता रहता है, जब कभी प्राइमरी डाउन होगा मैं ऑटोमेटिक ऑन हो जाऊंगा। तो ऑन ऑफ करने के काम कौन करता है, एटीएस करता है। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, लेट्स से मेरे पास एक नेटवर्क स्विच है, ये अभी प्राइमरी से चल रहा है, सेकेंडरी में भी कनेक्टेड है। अभी प्राइमरी से चल रहा है, पूरी मेरी नेटवर्क है पूरी प्राइमरी से चल रहा है। तो कभी मेरी पावर प्राइमरी बंद हो गया तो क्या होगा, स्विच एक बार रीलोड होगा, फिर सेकेंडरी से चल जाएगा पावर से। लेकिन ये जो एटीएस होता है, इसका सिंपल सा काम क्या होता है, ये दोनों को एक्टिव एक्टिव बना देता है, दोनों से पावर लेता रहता है। कोई एक फेल हो जाएगा तो दूसरे से ऑटोमेटिक चल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। गॉट इट।
ठीक है सर। सर ये जो एटीएस जो लगती है डिवाइस, ये एक रैक के लिए एक डिवाइस लगती है या पूरे डाटा सेंटर के लिए एक डिवाइस लगती है? पूरी डाटा सेंटर के लिए एक सिंगल डिवाइस ही लगती है। ओके, ऐसे नहीं कि ठीक है मेरे सर। पास चार चार रैक है, मैं चार एटीएस लगा हुआ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो एक सिंगल एटीएस होती है ना, इसकी कीमत लगभग 5 लाख आते हैं। और जितने भी छोटे बड़े, अगर आप सर्च भी करोगे ना गूगल में, गूगल के डाटा सेंटर में मैक्स टू मैक्स दो ही लगे हुए हैं, क्योंकि गूगल की दो हेडक्वार्टर्स हैं यूके में। सो उनके दो एटीएस लगे हुए हैं, विच इज स्नाइडर कंपनी के एटीएस लगे हुए हैं। तो पूरी डाटा सेंटर के लिए एक सिंगल एटीएस लगता है। गॉट इट? ये ओके कैसे सर। कनेक्ट होता है? क्या कैसे चीज? कनेक्ट होता है? इसकी कनेक्शन कुछ और नहीं है, ये जो केबलिंग? कनेक्शन, हाँ इसकी जो कनेक्शन है ये यूटिलिटी वाले देंगे। आपकी कंपनी में इलेक्ट्रिकल की डिपार्टमेंट होगा, वो आपको कनेक्शन करके देंगे। बस आपको तो टेस्टिंग करनी है कि एक सिंगल यूपीएस, प्राइमरी यूपीएस को मैं बंद कर दूंगा, मेरे डिवाइसेस सारे चलने चाहिए। फिर प्राइमरी को अप करूंगा, सेकेंडरी को डाउन करूंगा, मेरे डिवाइसेस चलने चाहिए। इसके अंदर कुछ नहीं होता, यहाँ से बेसिकली केबल्स निकल के इस पीडीयू में जाते हैं, और पीडीयू से आपके सारे नेटवर्क डिवाइसेस चलते हैं। कभी प्राइमरी बंद हो जाए पीडीयू फिर भी चलता रहेगा, कभी सेकेंडरी बंद हो जाए तो प्राइमरी से पूरी डाटा जाता रहेगा। इसकी कनेक्शन आपको नहीं करना, ये यूटिलिटी वाले करते हैं। आपको बस टेस्टिंग करनी होती है कि चाहे एक यूपीएस खराब हो जाए, सेकेंडरी से मेरी नेट डाटा सेंटर चलना चाहिए, या फिर सेकेंडरी बंद हो जाए, प्राइमरी से मेरी डाटा सेंटर चलना चाहिए। गॉट इट रजत? हाँ गॉट इट। सर इसके इसमें बाद RJ45 का पोर्ट भी है, तो इसमें इसको क्या वैसे भी मॉनिटर कर सकते हैं, हाँ मतलब बिल्कुल। आईपी डाल के या पिंग वगैरह करके? एक बहुत बढ़िया बात आपने बताया। इसके अंदर जो RJ45 की कनेक्टर होती है ना, इसके अंदर दो RJ45 कनेक्टर मिलती है। जो नॉर्मल बेस वेरिएंट होती है ना, इसके अंदर दो RJ45 की कनेक्टर आपको मिलती है। एक होती है कंसोल के लिए। कंसोल में बेसिकली इसके अंदर भी सेम चीजें होती है, इसके अंदर भी स्क्रिप्ट चलते हैं, इसके अंदर भी आप कंसोल ले सकते हो, आपके डिवाइस की एटीएस की आप कंसोल भी ले सकते हो। लेकिन इस कंसोल में काम करने के लिए यू शुड मस्ट हैविंग सम नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल। आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अच्छी खासी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, उनकी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है मैनेजमेंट की, इथरनेट केबल बेसिकली RJ45 कनेक्ट पोर्ट होती है। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक हार्ड कोडेड आईपी एड्रेस आता है, विच इज 192.168.1.1। ये आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट के इंटरफेस में रहता ही रहता है। ओके, आप सीधा आपके डेस्कटॉप में आईपी सेम सबनेट की आईपी दे दो, इसको कनेक्ट कर सकते हो, मॉनिटर भी कर सकते हो, डैशबोर्ड में भी दिखा सकते हो। एंड यू कैन आल्सो चेंज दिस आईपी एड्रेस यूजिंग दिस कंसोल। कंसोल के मदद से आप इसकी आईपी एड्रेस को चेंज भी कर सकते हो। बेसिकली ये जो RJ45 कनेक्टर रहता है, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए यूटिलाइजेशन किया जाता है। गॉट इट? सर जो इसमें कंसोल, जैसे आपने बोला कंसोल से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसको हम ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या कोई अलग से कोई पर्सन चाहिए रहेगा? देखो, ये जो डिवाइस होती है ना, ये राउटर स्विच नहीं है, ये एक अलग ही डिवाइस है। पहले तो ये समझो, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को मैनेज करता है। यहाँ पे मैं राउटिंग मैनेज नहीं करता, स्विचिंग मैनेज नहीं करता, ना ही पॉलिसी मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अलग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल के सिग्नल्स, जो सिग्नल्स है उन्हें मैनेज कर रहा हूँ। सो आपके पास अगर नॉलेज है सिग्नल्स को मैनेज करना, कैसे आरएफ काम करता है, सॉरी आरएफ, कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम करते हैं, कैसे यूपीएस टेक्नोलॉजी काम करते हैं, और उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, देन यू कैन मैनेज दैट। लेकिन हर एक छोटी बड़ी कंपनी में ना एक यूटिलिटी डिपार्टमेंट होती है, जिसके अंदर एक बंदा होता है जो एटीएस की एक्सपर्ट होता है। वो कुछ भी होगा, एटीएस में आके लॉग चेक कर लेगा, एटीएस में कोई फेल तो नहीं होता, एटीएस में कोई एरर तो नहीं आया, तो वो सब कुछ यहाँ से चेक कर लेगा। इसके लिए आपके पास थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल की नॉलेज आपके पास होना चाहिए, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। वो वेंडर आएगा, वेंडर भी कॉन्फ़िगर करके देगा, वो ऐसे भी होगा ना। हाँ, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं। Got it? ठीक है सर। आगे चलते हैं। That's how your network devices looks like. This is your LIU. This is your unloaded patch panel. This is your cable manager. This is your network switch, which is 2960 catalyst switch. This is your power PDU. This is your rodent device. ओके, जितना भी हमने चीजें देखा, इस नेटवर्क रैक के अंदर सब कुछ है। और ये नेटवर्क रैक की साइज क्या है, विच इज 9U। ओके, इसमें भी सब कुछ है। देखो, रोडेंट डिवाइस लगा हुआ है, पावर पीडीयू लगा हुआ है, स्विच लगे हुए हैं, केबल मैनेजर लगा हुआ है, पैच पैनल लगा हुआ है, एलआईयू लगा हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो 9U। ओके, तो सब कुछ इसी के अंदर आपको मैनेज करनी है सही से। ऐसा नहीं केवल मैंने मैशी करके फैला दिया, लास्ट में बाद में आप ही करोगे इसको फिर ठीक। सो इंजीनियर सर जो बनते हो। 9 ये इसकी लेंथ है, या मतलब कैसे हम इसको यूनिट देते हैं, 9U 10 12? ओके, वो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, हर एक नेटवर्क रैक की ना एक पर्टिकुलर साइज रहती है।
जैसे मैंने कहा मेरे पास नेटवर्क, अगर पहली वाली स्लाइड आपको मैं दिखाऊं, देखो यहाँ पे मल्टीपल्स यू के मेरे पास रैक्स है, जैसे 42 यू है, 37 रैक है, यू है, 32 है, 22 है, 18 है, एंड आफ्टर दैट इफ यू गो फर्दर देयर इज 6 यू, देयर इज 19 यू, और 9 यू, देयर इज 12 यू, देयर इज 15 यू, देयर इज 18 यू। अब आपको कैसे पता करेगा, आपको कैसे पता चलेगी मेरी कितना यू की रिक्वायरमेंट है? दैट्स डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपके नेटवर्क रैक के अंदर कितने डिवाइस आप लोगोगे वो डिपेंड करता है। लेट्स से आप लगा रहे हो 3 डिवाइस, ओके। जो मेरे पास स्टैंडर्ड नेटवर्क स्विचेस आते हैं, L2 स्विचेस की बात कर रहा हूँ मैं, वो लेते हैं 2U। वो 2U की स्पेस इसके अंदर कंजप्शन करेंगे, और आपकी जो LIU होता है वो लेगा 1U। आपकी जो केबल मैनेजर होता है वो लेगा 1U। तो टोटल है 2U, 3U, 4U। मेरे मुझे चाहिए 4U की एक नेटवर्क है। अभी 4U की तो कोई नेटवर्क है नहीं, तो आप परचेस करोगे फिर 6U की, ओके। जो नीचे जो स्पेस बच जाएगा उसमें आप लगाओगे PDU, पावर PDU, विच इज 2U। तो 4 2 6, 6 यू की आपकी रिक्वायरमेंट हो गया। अभी आपको कैसे पता, जैसे आपकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, ऑलरेडी एक डेटा सेंटर बना हुआ है, वहां पे बड़े बड़े रैक लगे हुए हैं, आपको अभी पता कैसे लगा, आप अभी पता कैसे लगाओगे ये रैक्स कितने यू के हैं? तो सिंपल सा कुछ नहीं करोगे, जैसे ही रैक की डोर ओपन करोगे ना, यहाँ पे लिखा होगा 1 यू, 2 यू, 3 यू, 4 यू, 5 यू, ऐसा लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा 42 यू, 37 यू, 32 यू। दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। सब कुछ इसके ऊपर लिखा होगा, स्टिकर लगे होंगे इसके ऊपर। गॉट इट मंजित? क्लियर क्लियर है सर। जब आपने बताया ना कि एक स्विच का 2U साइज होता है, इससे सर हाँ क्लियर हो हाँ, गया है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर दैट अगेन दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट, जिसमें कल आप जो पूछ रहे थे ना, ये उसी की ही बाइफर्केशन है। इसमें बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपकी जो फाइबर पैच कोड है वो सिंगल मोड है या मल्टी मोड है। देखो, जो दुनिया है ना, वो दुनिया मल्टीपल कलर्स बनाता रहता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज है, aqua कलर है, वायोलेट कलर है, लाइम ग्रीन है, येलो कलर है, एंड जैकेट कलर है। बहुत सारे कलर्स मेरे पास फाइबर में मिलेंगे। आप अगर इंडस्ट्री में जाओगे ना, आपको सिंगल कलर तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। किसी रैक में लगा होगा येलो कलर, किसी रैक में लगा होगा ग्रीन कलर। सो अभी आपको पता कैसे चलेगी मेरी सिंगल मोड कौन सी है, मल्टी मोड कौन सी है? देखो, पूरी दुनिया में, पूरी ग्लोबल में, अगर आपको येलो कलर की कहीं पे फाइबर दिख रही है, दैट्स मीन दिस इज सिंगल मोड, ओके। जो फाइबर बनाने वाली जो स्टैंडर्डाइज कंपनी है ना, उन्होंने क्या किया, सिंगल मोड के लिए एक सिंगल कलर ही रख दिया, विच इज येलो कलर। येलो कलर का मतलब होता है सिंगल मोड। सिंगल मोड में दूसरी कोई कलर आपको नहीं मिलेगा। ये जो aqua कलर है, वायोलेट कलर है, लाइम ग्रीन है, ऑरेंज है, जैकेट कलर है, ये सारे आपके किसके कलर है? मल्टी मोड की कलर है। दीज आर नथिंग। येलो कलर को छोड़ देने के बाद जितने टाइप के आपको फाइबर देखने को मिलेंगे, दीज आर नथिंग बट योर मल्टी मोड। लेकिन अगर येलो कलर की फाइबर आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज योर सिंगल मोड, ओके। कहीं पे भी आप जाओगे, अगर आपको येलो कलर की फाइबर दिख रहा है, दैट मीन्स योर सिंगल मोड। आउट ऑफ येलो कलर नहीं है, दूसरी कोई कलर है, जैसे ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रीन है, वायोलेट है, ये तो कुछ 4 5 कलर यहाँ पे डोनेट है। आउट ऑफ दैट अगर और टाइप्स की कलर है, दैट मीन्स दे आर मल्टी मोड। गॉट इट? यस, ओके। यस सर। रजत, गॉट इट? Yes, yes, clear. देन सम नेटवर्क डायग्नोस टूल। देखो, नेटवर्क इंजीनियर को और नेटवर्क डायग्नोस हेलो, टूल में, हाँ जी, पीछे वाला स्लाइड कीजिए ना। एक सेकंड ये भी बताओ। शायद कोटेड भी है और मेंशन भी है शायद ना। हाँ, यहाँ पे जीरो, सब कुछ है। सॉरी, OM1। ये केबल के ऊपर वहां पे मेंशन होगा या मतलब? देखो देखो, जो होती है ना फाइबर की मल्टीमोड, जितने भी टाइप की है, उनके अंदर फिर बाइफर्केशन है, कैटेगरीज है, स्पीड वाइज। जितने भी स्पीड हो, मल्टी मोड का मतलब है येलो कलर नहीं है, बाकी के कलर। येलो कलर को छोड़ने के हम्म। बाद जितने टाइप के कलर है, दीज आर मल्टी मोड। सिंगल मोड में बस येलो कलर आएगा। सिंगल मोड में भी दो आते हैं, OS1, OS2। ये बेसिकली स्पीड होते हैं इनके, हम्म। ओके। और ठीक। एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आप नेटवर्क इंजीनियर हो, या फिर डेटा सेंटर इंजीनियर हो, या फिर सर्वर में अपनी करियर बनाना चाह रहे हो, या फिर नेटवर्क में बनाना चाह रहे हो, यू शुड नो दिस नेटवर्क टूल वेरी वेल। आपको नेटवर्क टूल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एज जब आप सीनियर पोजीशन में जाके बैठोगे ना, आपको नीचे वाले बंदे को भी गाइड करना, ये भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स से एज ए नेटवर्क इंजीनियर, मैं एक नेटवर्क एडमिन हूँ, मेरे नीचे L3 L2 L1 तीन बंदे काम करते हैं। तो मुझे उन्हें गाइड भी करना होता है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना होता है, ऐसा नहीं, ऐसा करना होता है। ऐसे नहीं कि मुझे नेटवर्क टूल के बारे में पता ही नहीं है, मुझे L1 बंदा कह रहा है सर आप L3 में कैसे बैठ गए जाकर, आपको जो पता ही नहीं है मल्टीमीटर क्या होता है, ये
लैन कनेक्टर क्या होता है। सो यू शुड नो दैट ये सब होते हैं क्या। देखो नॉर्मली जो मेरे पास पैच कोड होते हैं ना, दीज आर नथिंग बट योर पैच कोड, और इसको हम क्या कहते हैं, RJ45 कनेक्टर, दिस इज RJ45 कनेक्टर। अगर ये दो कनेक्टर को मैं हटा दूं, दिस इज कॉल्ड लैन केबल। ओके, अगर एक लैन केबल के साथ मैंने दोनों साइड में पैच RJ45 कनेक्टर लगा दिया, दिस इज कॉल्ड पैच कोड, दिस इज कॉल्ड पैच कोड। अगर एक कनेक्टर नहीं होंगे, ये कनेक्टर अगर नहीं होंगे, दिस इज कॉल्ड लैन केबल। गॉट इट। अगर क्या उसके अंदर कनेक्टर लगे होंगे, दैट्स मीन दीज आर कॉल्ड पैच कोड। अगर कनेक्टर नहीं लगे होंगे, दिस इज कॉल्ड लैन केबल। गॉट इट। समझ में आ गया क्या कहना चाहता हूँ मैं। यस सर। यहाँ पे जो पहला टूल हमारा है, दिस इज योर लैन टेस्टर। देखो यहाँ पे लिखा भी है केबल टेस्टर। ये जो केबल है, मुझे अभी पता कैसे चलेगी। लेट्स से आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक यूजर ने आपको कॉल किया कि सर मेरे नेटवर्क नहीं चल रहा। तो आप क्या करोगे, आप अपनी L1 बंदे को भेजोगे, जाके भाई जाके वहां पे चेक कर वो उसकी पैच कोड वगैरह सही है या नहीं है। वो क्या लेके आएगा अपने साथ, एक लैन टेस्टर लेके आएगा, फिर केबल टेस्टर लेके आएगा। ये एक साइड में ये दो स्लॉट है, ये वाली एक पोर्शन खुल जाएगा, ये वाली एक खुल जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। एक साइड यहाँ पे लगाएगा, एक साइड यहाँ पे लगाएगा। यहाँ पे जो बटन है ना, इसको ऑन करेगा। यहाँ पे देखो 8 तक लिखा हुआ है, उसके बाद जी लिखा हुआ है। जी का मतलब होता है ग्राउंडेड। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। हमें पता है RJ45 जो केबल होती है उसके अंदर 8 केबल होते हैं। ओके, 4 पेयर में होते हैं, 8 केबल होती हैं। अगर आपके सारे केबल सही है, यहाँ पे एक एक करके सबके अंदर लाइट जलेगा। अगर किसी एक में भी नहीं जला, दैट्स मीन देयर इज अ फॉल्ट इन दिस पर्टिकुलर केबल, तो आप केबल को रिप्लेस करोगे। तो सिंपल सा केबल टेस्टर का काम क्या होता है, लैन केबल को डायग्नोस करने के लिए, लैन केबल को आइडेंटिफाई करने के लिए, इज इट राइट और रॉन्ग, इट इज फॉल्टी और गुड। ओके, बेसिकली लैन केबल की हेल्थ चेक करने के लिए हम लैन टेस्टर यूज करते हैं। अगेन दिस इज काइंड ऑफ सेम, इसके अंदर भी आप लैन टेस्ट, इसको भी आप लैन टेस्टर भी कहते हो। इसके अंदर आप लैन टेस्टर, ये जो चेकअप मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे एक लगाओगे, यहाँ पे एक लगाओगे, ये सेम ही होता है। लेकिन इसके अंदर एक एडवांस फीचर क्या होता है, वायर ट्रैकर। आप केबल को ट्रैक भी कर सकते हो। जैसे आपके डेटा सेंटर के अंदर 5000 केबल आए हुए हैं, अभी आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सा केबल मुझे ट्रैक करना है, मुझे केबल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कौन सा केबल मेरी दूसरे रैक तक गया हुआ है। तो सिंपल आप कुछ नहीं करोगे, एक एंड पे आप एक डिवाइस को लगाओगे, ये जो दूसरी एंड है ना, आप केबल के ऊपर ऊपर लगा के जाओगे, जो वाली केबल होगा इसके अंदर लाइट जलना शुरू कर जाएगा। ये थोड़ी सी एडवांस टूल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये ओआर को ट्रैक कर सकता है, जो केबल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। तीसरा, दिस इज योर एलसी पैच कोड। बेसिकली this is your single mode patch code, this is your multi mode patch code, this is your multi mode, this is your multi mode। as I earlier से जो येलो कलर होता है, दिस इज योर सिंगल मोड। आउट ऑफ दैट दुनिया में जितने तरह के फाइबर के कलर है ना, दीज आर मल्टी मोड, दिस इज मल्टी मोड, दिस इज मल्टी मोड, दिस इज मल्टी मोड। ओके, एंड दिस इज योर नथिंग बट योर फाइबर केबल लेजर, या फिर ऐसे कहते हैं, इसे हम नॉर्मली तो लेजर ही लाइट ही कहते हैं, लेजर लाइट ही से कहते हैं, या फिर इसे फाइबर टेस्टर भी बोला जाता है। ओके, इसमें सिंपल क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक फोटो भी आइडेंटिफाई किया है। देखो यहाँ पे फोटो में हमने क्या किया है, इस केबल की, फाइबर केबल की एक एंड को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, और यहाँ पे इसको ऑन किया है। जैसे आप ऑन करोगे ना, ये फाइबर की दूसरी एंड पे लाइट जलना शुरू हो जाएगा, दैट्स मीन्स ये फाइबर केबल आपकी सही है। फाइबर केबल खराब है या नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन डिटेक्टर और बाय द हेल्प ऑफ दिस लेजर लाइट। एक एंड में लाइट लगाओगे, दूसरी एंड में आपको लाइट आना चाहिए, दैट्स मीन्स योर केबल इज गुड। अगर लाइट लाइट नहीं आ रहा, दैट्स मीन्स देयर इज सम इशू विद दिस फाइबर पर्टिकुलर, विद दिस फाइबर केबल। गॉट इट। यस सर। Rajat, Bismay, having any query? No. So these are some advanced tool, or these are some network tools. This is nothing but your RJ45 connector. These are used for Cat5 and Cat6। ये कहाँ पे यूज होते हैं आपके, नॉर्मली Cat6 में यूज होते हैं, Cat5 में यूज होते हैं। नॉर्मल वाले प्लास्टिक, ये पूरी की पूरी जो है ना, ये पूरी की पूरी कनेक्टर प्लास्टिक का बना हुआ होगा। लेकिन वही सेम में Cat6A में जाओगे ना, Cat6A के अंदर इसके, ये प्लास्टिक के ऊपर एक लोहे की लेयर होगा, एक आयरन की लेयर होगा, दिख रहा है ना, ये आयरन का एक लेयर है। सो विच इज मच मोर सिक्योर, मच मोर डस्ट प्रूफ। इसके अंदर ज्यादा धूल वगैरह नहीं जा सकता, लॉन्ग टर्म इसे आप यूज कर सकते हो। सो डिफरेंस क्या होता है, Cat6 और Cat5 में क्या होता है, वो बिल्कुल ही प्लास्टिक का होता है, चीप क्वालिटी का होता है। Cat6 के अंदर एक आयरन की कोटेड रहता है, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म यूज हो जाए, ये जो कनेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा खराब ना हो। और इसको हम बेसिकली कहते हैं क्या, लैन जॉइंटर कहते हैं।
लेट्स से आपने केबल कनेक्ट किया, केबल कनेक्ट करने के बाद केबल जो लैन केबल की जो रेंज रहती है विच इज 100 मीटर, हमें पता है 100 मीटर से ज्यादा मैं लेके नहीं जा सकता लैन केबल को, लेकिन मुझे उसे ज्यादा लेके जाना है। इन दैट केस वी शुड यूज दिस काइंड ऑफ एक्सटेंडर। इसको क्या कहा जाता है, लैन एक्सटेंडर बोला जाता है। जैसे आप ये केबल कनेक्ट किया है इस तरफ, दूसरी केबल यहाँ से कनेक्ट किया है, ये केबल की जो लेंथ थी वो 100 मीटर हो गया था, आगे नहीं जा पा रहा था, तो सिंपली मैंने कनेक्टर लगाया यहाँ पे, कनेक्टर से दूसरी केबल लगा के और 100 मीटर में इसे आगे लेके जा सकता हूँ। तो लैन एनवायरनमेंट में बेसिकली लैन को एक्सटेंड करने के लिए लैन एक्सटेंडर यूज किया जाता है। इट्स लुक्स लाइक दैट, ऐसे बेसिकली ये दिखता है। एक सिंगल से दो भी ले सकते हो, सिंगल से सिंगल भी ले सकते हो। दिस इज नथिंग बट योर क्रिम्पिंग टूल। इसके ऊपर आप सबने बहुत ज्यादा काम किया होगा। लेट्स से इफ यू आर अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर और डेटा सेंटर इंजीनियर, you guys must hear or you guys must see these kind of devices. दिस इज योर क्रिम्पिंग टूल, जिसके अंदर हम इस काइंड ऑफ जो कनेक्टर होते हैं इनको हम क्रीम करते हैं। इसके पीछे बेसिकली केबल घुसाते हैं, अपनी 8 पेयर की केबल घुसाते हैं और इसके अंदर बेसिकली उसे क्रीम करते हैं, मतलब दबा देते हैं। दबाने के बाद क्या होता है, वो केबल के अंदर कनेक्टर के अंदर मेरी केबल क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है। दिस इज नथिंग बट योर कैट 6A कनेक्टर, कैट 6A क्रिम्पिंग टूल। दिस क्रिम्पिंग टूल इज यूज फॉर कैट 6 एंड कैट 5। दिस क्रिम्पिंग टूल इज यूज इन कैट 6A एंड कैट 7। ये थोड़ी सी एडवांस होता है, इसके अंदर मल्टीपल चीजें। ये जो लोहे वाली पोर्शन है ना, इसको वो क्या कर सकता है, मोड़ के बिल्कुल लॉक कर देगा। यहाँ पे क्योंकि कोई लोहे की कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये सिंपल सा था। क्योंकि यहाँ पे लोहे की कॉन्सेप्ट है मेरे पास, यहाँ पे देखो छोटा सा लोहे सा भी नीचे से आपको दिख रहा होगा। सो इसको भी लॉक करने के लिए यहाँ पे बना हुआ है, ये इसके अंदर जाएगा और लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आपकी केबल जो है बिल्कुल ही इस लोहे के साथ लॉक हो जाएगा, तो जितना भी खींचोगे ना वो निकलेगा नहीं, निकले इससे। इसके अंदर कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं था आपका, अगर आप केबल और कनेक्टर को खींचोगे जोर से तो केबल आपकी निकल जाता था। और दिस काइंड ऑफ डिवाइस इज नथिंग बट, कैन यू समवन जस्ट टोल्ड मी व्हिच काइंड ऑफ डिवाइस इट इज? स्प्लाइसिंग मशीन। यस राइट, दिस इज नथिंग बट योर फाइबर स्प्लाइसिंग मशीन। ओके, अभी फाइबर स्प्लाइसिंग क्या है, जैसे हमने देखा RJ45 कनेक्टर्स को या फिर RJ केबल्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम कनेक्ट कर सकते हैं केबल्स को। वैसे ही फाइबर को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। फाइबर की जो कनेक्शन है इसे करने के लिए एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्या, फाइबर स्प्लाइसिंग गाय कहते हैं। जो जिसके पास एक टूल होता है, इस टूल की जो कीमत स्टार्टिंग कीमत होती है विच इज 3 to 4 लाख होती है। इसके अंदर नॉर्मली क्या होती है, हम फाइबर को स्प्लाइसिंग करते हैं। लेट्स से आपकी एक फाइबर यहाँ से आ रही है, एक ऑफिस से एक फाइबर आ रही है और दूसरी ऑफिस में वो जाएगा, लेकिन लेंथ नहीं है, फाइबर आपकी छोटी है, जा नहीं पा रहा दूर तक। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक दूसरी फाइबर का टुकड़ा लाओगे, दोनों को कनेक्ट कर दोगे। और ये वो वाली इलेक्ट्रिक वाली कनेक्शन नहीं है कि मैंने लगा दी टैप लगा दी ऊपर, वो नहीं होगा। आपको इस मशीन के अंदर रखना पड़ेगा और स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। ये जहाँ पे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे करनी पड़ेगी। इसकी हालांकि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आप ज्यादा इसको मतलब क्लियर कर सकते हो कैसे होती है। और ये जो पूरी टूल होती है तो फाइबर स्प्लाइसिंग की टूल होती है। इसको आपने बहुत बार देखा होगा, जियो वाले जो लेके जाते हैं एयर फाइबर लगाने या फिर ब्रॉडबैंड वाले जो लेके जाते हैं, ये वाले टूल लेके जाते हैं जिसके अंदर उनकी एक टूल रहती है जिसको फाइबर स्प्लाइसिंग टूल कहते हैं और पूरी उनकी किट रहती है। ओके, कोई डाउट है इन सारे टूल में से? नहीं। सर सर जो लैन एक्सटेंडर है कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है क्या? नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, बस प्लग एंड प्ले। गॉट इट रजत? ओके। गॉट ओके इट सर। मंजिल? तो ये क्या होता है, इसको किसी ने देखा, इसका नाम किसी को पता है? S1 होता है सर ये? क्या होता है? S1 बोलते हैं सर इसको, पता नहीं। ओके ओके, एनीवन एल्स? इसमें से सर जैसे फाइबर के कनेक्शन रहते हैं ना, तो जैसे एक बॉक्स रहता है जहाँ से में नॉर्मल घर के अंदर कनेक्शन आता है, तो ऐसे 8 बॉक्स चलते हैं सर इससे, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। ओके, एनीवन हैविंग एनी आइडिया? रजत आपको पता है क्या है? नहीं। ओके, देखो इस बॉक्स के जो टेक्निकल नाम है, दिस इज कॉल्ड फाइबर जॉइंटर। इसको हम बोलते हैं क्या, फाइबर जॉइंटर। जो आउटडोर में जो जॉइंटिंग होती है ना, देखो नॉर्मली तो मेरी घर के अंदर से मेरे डेटा सेंटर के अंदर मैं स्प्लाइसिंग कर रहा हूँ या फिर मेरे घर के अंदर मेरे रैक के अंदर मैं स्प्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरे पास स्प्लाइसिंग को छुपाने के लिए, स्प्लाइसिंग को डस्ट प्रूफ बनाने के लिए मेरे पास क्या है, LIU है। ओके, लेकिन आउटडोर में अगर मैं स्प्लाइसिंग कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर एक स्प्लाइसिंग हुआ केबल भी पड़ा हुआ है। जैसे मैं आउटडोर में स्प्लाइसिंग कर रहा हूँ,
we can't do any kind, we can't connect any kind of LIU। मैं वहां पे LIU रख ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे रह ही नहीं सकता उस काइंड ऑफ सिनेरियो में। सो वहां पे हम रखते हैं क्या, फाइबर जॉइंटर। आपने बहुत सारे रोड के साइड में ऐसा देखा होगा, इसके अंदर कुछ नहीं होता, दो फाइबर के टुकड़े बेसिकली जॉइंट होते हैं, और पूरे जो जॉइंट की जो जॉइंट जहाँ पे होता है ना, ये जो जॉइंट वाली एरिया है, ये इसके अंदर बिल्कुल सेफ रहता है। यहाँ पे केबल टाई होती है ताकि कहीं से कोई खींचे ये बाहर ना जाए। ओके, इसको हम कहते हैं फाइबर जॉइंटर। एंड दिस इज नथिंग बट योर रूट मार्कर। इसको टेक्निकली क्या बोला था, रूट मार्कर। ओके, आपने रोड साइड में फाइबर लेके गए, आप चला, आपने लेट्स से आपकी ये रोड है, ये जाने आने के लिए रूट रोड बना हुआ है, इसके साइड में आपने केबल डाला है, फाइबर की केबल, और गड्ढा गड्ढा करके उसके अंदर आपने फाइबर केबल डाल दिया। 2 साल बाद आके खुद ही भूल जाओगे कहाँ पे मैंने फाइबर डाला था। तो फाइबर कहाँ से मैंने डाला था वो याद रखने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एक लोगो लगाओगे जिसको हम कहते हैं रूट मार्कर। और ये रूट मार्कर की दूसरी क्या आइडेंटिफिकेशन है, जैसे आपने इस रूट में 2 फीट के अंदर एक फाइबर डाल के आपकी कंपनी के लिए लेके गए हो। ओके, अभी दूसरी कोई कंपनी यहाँ पे आके खुदाई करके आपके फाइबर को काट ना दे, इसलिए हम इसको बेसिकली लगाते हैं ताकि दूसरों को पता चले इसके नीचे ये जो रूट है, ये जो सिंबल है, इसके नीचे फाइबर की एक केबल जा रही है। एंड दिस केबल इज बिलोंग्स टू सम प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं रूट में रूट मार्कर, इसको बोलते हैं फाइबर जॉइंटर। गॉट इट? सर जो फोटो में एक फाइबर जॉइंटर दिख रहा है ना, इसमें जैसे 4 फाइबरें जा रही हैं, तो ये चारों को एक साथ जॉइंट कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा सर ये? देखो, इसके अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं, यहाँ से एक फाइबर आप डाल सकते हो, यहाँ इसके अंदर भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होती है। 8 फाइबर की जॉइंटर लेनी है, फिर 16 की लेनी है, इसके अंदर कितने आप, इसके अंदर आप मैक्स टू मैक्स 16, अगर नॉर्मली बात करूँ ना, नॉर्मली इसके अंदर आप 8 फाइबर जॉइंट कर सकते हो। यहाँ के अंदर यहाँ पे भी एक रख सकते हो, यहाँ पे एक रख सकते हो, इस तरफ एक रख सकते हो, इस तरफ एक रख सकते हो। और सब अपने अपने केबल टायर से फिक्स रहेंगे, कोई किसी के ऊपर नहीं आएगा। और ठीक यहाँ ठीक से है सर। आपकी नॉर्मल केबल आती है जो ब्लैक वाली केबल है फाइबर का। ओके, so out of that, we are moving, and I just saw you a video that's which is demonstrate how actually splicing happen in real environment. Let me open the splicing video. If you just go and check. Okay, so that's how fiber splicing is actually happening. I am also uploading this particular video in our portal, so registered candidate can identify this video more flexibly. Manjit, I am also sharing this video to you. Okay, so that's all about today's session. If you have any queries, let ask me. Rajat, having any query, please ask me. Bisma, you can also. Manjit, if you have any ये query. आपने जैसे बताया जो लेन एक्सटेंडर, ओके, तो मल्टीपल टाइप का होता है, 1 to 2 या 1 to 1। तो जैसे कि एक स्विच में एक कनेक्शन गया है, कैसे एक सिस्टम को गया है, ठीक है। हाँ, तो वहां पर एक मान के चलो 150 मीटर में के 150 मीटर में एक मेरा ये है, वहां पर एक्सटेंडर लगा दिया, ठीक है, तो 1 to 2 हो गया। ठीक है, वही 1 to 2 केबल निकल के गया, तो उस 2 केबल जो निकल के गया तो रिसीवर के पास, तो दो दो सिस्टम में वो यूज कर सकते हैं, ये 2 आईपी आएगा या सिंगल आईपी आएगा या कॉन्फ्लिक्ट होगा, या इसका थोड़ा समझ दे। देखो, जैसे आपने यहाँ पे, लेट्स से ये आपकी ऐसी है, यहाँ से आपके पीछे से आई हुई है एक केबल आपके नेटवर्क रैक से, और यहाँ से आपने 2 केबल निकाला है, ऐसे और ऐसे, राइट।
ओके। यस और यहाँ पे यस आपने एक सिस्टम लगाया है और यहाँ पे भी एक सिस्टम लगाया है। जैसे आपकी पहली पॉइंट थी आईपी सेम मिलेगा या अलग मिलेगा, आईपी दोनों की अलग अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों सिस्टम की अलग अलग होस्ट नेम है, दोनों दोनों सिस्टम अलग अलग आर्प रिक्वेस्ट भेजेंगे और दोनों सिस्टम अलग अलग डोरा प्रोसेस करेंगे। ओके। सो दोनों सिस्टम की आईपी अलग अलग मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस होगी ना इसमें, व्हिच इज योर लेटेंसी। ओके, स्लो हो जाएगा सिस्टम की, जो ओके इंटरनेट कम्युनिकेशन होगा वो बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा। लेट्स से आपको ये पहले एक सिस्टम मेरी 100 एमबीपीएस यूज कर रहा था, अभी दोनों सिस्टम के अंदर वो 100 एमबीपीएस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड टू। ये 50 चलाएगा, जो ये सिंगल 50 केबल चलाएगा। आया है स्विच से, तो सिंगल पोर्ट से आया है ना, मान के चलो 5 नंबर पोर्ट में आया है, तो 5 नंबर पोर्ट क्या दो आईपी प्रोवाइड कर सकता है? हमारी स्विच जो है, स्विच आईपी प्रोवाइड नहीं करता, ये चीज ध्यान रखो। स्विच आईपी प्रोवाइड नहीं करता। आईपी कौन प्रोवाइड करती है? मेरे राउटर प्रोवाइड करता है या फिर डीएससीपी प्रोवाइड करता है। सो रिक्वेस्ट, ये होस्ट तो सिंपली रिक्वेस्ट करेंगे और पोर्ट से आपके रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ तक? आपके डीएससीपी तक। ओके जैसे इसने इसने सर पहले ये डोरा एज अ हब प्रोसेस काम किया। करेगा यहाँ पे, क्या चीज? एज अ हब काम करेगा यहाँ पे ये बिल्कुल एज ए हब कि काम करेगा। लेकिन इस ट्रेडिशनल होम में क्या होता था, उसको पावर सप्लाई भी चाहिए होता था, लेकिन इसमें पावर सप्लाई नहीं होता है, हॉट प्लग इन होता है, बस प्लग करो और काम करो, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। रजत, आप जो पूछ रहे हो ना, देखो अलग अलग क्यों मिलेगा। जैसे हाँ मैंने दोनों की कनेक्ट कर दिया, इसने डीएससीपी के लिए प्रोसेस एनेबल किया, डोरा प्रोसेस, इसको आईपी मिल गया। और इसने डीएससीपी के लिए अलग प्रोसेस इनिशिएट किया और इसको आईपी मिल गया। तो दोनों की प्रोसेस अलग अलग है, दोनों की मैक एड्रेस अलग है। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस तो कहाँ पे समझ गए। आपको आएगा? जैसे कि मेरा डिफरेंस रियल आपको आएगा। सिनेरियो में एक आपको बताता हूँ। जैसे कि आईपी फोन, सॉरी, ये नॉर्मल फोन हो गया, जैसे कि जस्ट चलता है ये। तो ऐसे कि एक सिनेरियो मैंने देखा है, तो एक फोन में दो लैन केबल से दो फोन कनेक्टेड है, वो दोनों का जो एक्सटेंड है सेम है। वो वहां पर कैसे काम करता है पता है? आपकी बात नहीं समझा। मान के चलिए ये मैं सिस्टम के बारे में बताया, ठीक है, सिस्टम का आईपी दो मिल गया। मैं वही सिनेरियो में बोल रहा हूँ कि जो लैंड फोन होता है ना, जो कंपनी के अंदर आईपी फोन नहीं, लैंड फोन होता है, जो जैसे कि टाटा की हो गया, कुछ ही सर्विस के हो गया, तो एक सिंगल सिंगल असाइन होता है पोर्ट, एक सिंगल सिंगल नंबर से। तो सिंगल सिंगल नंबर क्या करता है कि दो फोन में कनेक्टेड डिवाइड हो गया है, ठीक है, देखो, एक सिंगल नंबर। तो आप उसी मुझे पर तो पहले, वेट वेट अ मोमेंट, आप मुझे पहले ये कंफर्म कराओ, आप जो टेलीफोन की बात कर रहे हैं, विच इज आईपी बेस्ड फोन और नॉर्मल टेलीफोन? टेलीफोन। नॉर्मल टेलीफोन। यस। अगर नॉर्मल टेलीफोन की बात कर रहे हो, तो नॉर्मल टेलीफोन इज नॉट वर्किंग इन डिजिटल सिग्नल, वो काम करता है एनालॉग सिग्नल पे। तो एनालॉग में आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल केबल है ना, तो एनालॉग सिग्नल इलेक्ट्रिकल केबल्स में ही काम करता है। आप एक केबल के ऊपर 10 का सिस्टम भी लगा सकते हो, 10 टेलीफोन भी लगा सकते हो, लेकिन डिजिटल में वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है। एंड आप अगर आईपी फोन है, देन वहां पे कॉन्फ़िगरेशन बेस आप सेग्रीगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल ट्रेडिशनल फोन है, देन दिस इज रनिंग एन एनोलन सर्किट, वहां पे आप कर सकते हो। वही पे यस यू कैन डू, डाउट था। yes you can do, but if you are doing that, this is not a network part। जो नॉर्मल एनोलग, जो एनोलग नेटवर्क होती है ना, उसकी पूरी कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। वो बेसिकली हब एंड स्पोक में चलता है या फिर सिंगल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में चलता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उनकी जो डिवाइसेस होती है, जो नॉर्मल टेलीफोन को मैनेज करते हैं, वो डिवाइसेस भी अलग होते हैं। ठीक है, समझ गया। Okay. So now also we are having some time. If you have any query, let you guys are asking me. Please ask me if you have any query. और हाँ, इसकी जो क्लासेस की जितने भी रहेगी ना नोट्स वगैरह, वो कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी पोर्टल में। सो यू मस्ट गाइस आर चेकिंग द definitions and notes actually, okay? Bismay, having any query? नो 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 नो। Okay. Manjit, are you having any query? सर कोर्स के रिगार्डिंग एक क्वेरी थी, जी। अभी कर सकता हूँ क्या सर वो, या बाद में कॉल पे कर लेंगे? नहीं नहीं, बता दो, कोई नहीं। सर जैसे कोर्स, जैसे मैं आपको पहले भी बात हुई थी, जो मैं चाहता था कि जैसे बिगिनर होता है, बिगिनर का तो बेसिक्स तो सब क्लियर है, लेकिन जैसे उसमें रहता है सीसीएनए और सीसीएनपी, तो मैं चाह रहा था कि जैसे एडवांस तक अगर जाया जाए तो कुछ ऐसा हो सकता है, या उसके लिए मल्टीपल मुझे कोर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे? नहीं,
नहीं नहीं बिल्कुल आपके लिए ना हम लोगों ने फिर प्लानिंग किया था, मैंने टीम के साथ भी डिस्कशन किया था। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी रिक्वायरमेंट आते हैं जहाँ पे बंदा कहता है मेरा पास ना सर 50% तो मेरी बेसिक बेसिक बिल्कुल क्लियर है। अभी हम्म मुझे क्या करना है, बेसिक में भी थोड़ी बहुत जानी है और एडवांस में भी थोड़ी बहुत जानी है, तो उसके लिए हमने क्या किया फिर फंडामेंटल और सीसीएनए और सीसीएनबी तीनों को कंबाइन करके उसके लिए कोर्स बनाया है, जिसके अंदर आपको जी तीनों चीजें पढ़ना पड़ेगा। आप पहले फंडामेंटल थोड़ी बहुत 1-2 महीने पढ़ेगा, उसके बाद सीसीएनए के पूरे टॉपिक्स आप पढ़ोगे, उसके बाद सीसीएनए पे की एक इंट्रोडक्शन के साथ एक ब्रीफ आप पढ़ोगे उसके अंदर। इसमें जैसे से आप राउटिंग सिक्योरिटी पे वगैरह पढ़ो, भी कवर होगा। लाइक हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आप बेसिक की हो गई, फंडामेंटल्स तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके अंदर आपको स्विचिंग भी सीखने को मिलेगा, राउटिंग भी सीखने को मिलेगा। ऑल्सो आप सिक्योरिटी में पालो अल्टो नेटवर्क भी सीख सकते हो। अब सिक्योरिटी के अंदर जब बात आती है ना, नॉर्मल सिक्योरिटी तो आप सीखोगे ही सीखोगे, उसके साथ ही हम हम्म आपको उस वाली जो कंबाइन वाली जो कोर्स है ना, उसके अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल भी पढ़ाएंगे। आप पालो अल्टो चूज कर सकते हो या चेक पॉइंट फायरवॉल, आपके कस्टमाइजेशन के ऊपर। लेट्स से आपको अच्छा लगता है कि मैं पालो अल्टो में सीखूंगा, तो सेम कोर्स हम्म के अंदर हम आपको पालो अल्टो पे भी 2-4 सेशन आपको बताएंगे, पालो अल्टो होता कैसा है, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, वो आपको उसी कोर्स में देखने को मिल जाएगा, व्हिच इज आवर कंबाइंड कोर्स। ठीक है सर, और इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? ड्यूरेशन इज अगेन 8 मंथ रहेगी आपकी। 8 मंथ। और अगर हम नॉर्मल सीसीएनए करते हैं तो सर उसमें कितना ड्यूरेशन रहेगा? ड्यूरेशन 12 मंथ। कोर्स का ड्यूरेशन सर, जैसे पूरा जैसे क्लास चलेगी। यस यस वही तो कह रहा हूँ, नॉर्मल सीसीएनए करोगे इट इज 12 मंथ, एंड अगर कंबाइन वाला करोगे तो 8 मंथ। 8 मंथ हम इसलिए 8 मंथ की अगर बात करूँ ना, तो ये 8 मंथ होती है आपकी बस पढ़ाई पढ़ाई की। उसके बाद अगर जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देन 1 महीना ज्यादा लेके चलो, विच इज 9 मंथ। नॉर्म अच्छा, अगर हम सीसीएनए कर रहे हैं तो उसमें 12 मंथ, अगर हम यस यस कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें 8 मंथ। बिल्कुल। सीसीएनए में 12 मंथ को हमने दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। 8 मंथ होती है इसकी कोर्स, मतलब आप पढ़ोगे बस 8 मंथ, उसके बाद जो रेस्ट मंथ रहेंगी उसमें आप अपनी प्रिपरेशन करोगे, लाइक जॉब रेडी हम आपको कराएंगे और जॉब प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और सर इसका मतलब कोर्स का पूरा चार्जेस वगैरह कैसा रहेगा सर? वो मैं आपको ना एक बार 1-to-1 भेज दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, बाकी कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, बाकी कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, थैंक यू मंजित। रजत कोई डाउट है आपको? नहीं, ठीक ठाक है सब। ठीक ठाक है, क्या ठीक ठाक है? Okay, guys. So that's all for today. We will meet tomorrow at the same time, at same place. Okay, guys. Thank you. थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू। अरे ମୁଁ ବୁଝିପାଇଲିନି ଯେ କେତେ ମସିହାର କୋଉଠି କେତେ ମସିହା କାହିଁଟା ବନେଇଛୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରିବା ସାର୍, ମୋର ଆଜି ଯାହା ହଉ କରାନ୍ତୁ।